Okay, so the first thing which you're going to start with is the general etiquettes. Again, to talk about, these are very, very basic things which you're going to talk about. But what I've seen is that from my experience, ये even जो basic basic चीजें हैं, people don't follow. ठीक है? So can you tell me कि क्यों ये basic कुछ जो चीजें होती हैं वो जो common sense वाली होती हैं लोग follow नहीं करते? Why? What would be the reason for that? Anyone? Why don't people follow basic things? Okay. So whenever there's a gap between requirement by the organization की organization चाहती है कि इस लेवल के हमें एम्प्लॉयज चाहिए और जबकि जो एक्चुअल लेवल है वो इतना है, तो जो गैप होता है इट कैन बी बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स. वन इज नॉलेज, कि पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट कि यार ये हमें तो पता ही नहीं था कि दीज आर द एटिकेट गाइडलाइंस. ठीक है. द सेकेंड हैंड भी स्किल. इस केस में स्किल का कम रिक्वायरमेंट है कि इसमें कोई ऐसा स्किल नहीं है. सो इफ यू गेट द नॉलेज you can actually start following it very easily. The third part is A, or which is the attitude, कि they know about it but they don't want to follow about it. ठीक है. But अगर आप नहीं करते हो, if you having the knowledge and you don't do it, then there are consequences. So अभी तक before this training people could have said that कि सर हमें नहीं पता etiquettes का, हमें नहीं पता कि journal etiquettes कैसे होते थे, dress code का क्या part है, और what are the how to write a proper email, how to conduct a proper meetings. But after today you cannot give that excuse. ठीक है. Because the training is being conducted और आपकी जो वो knowledge की requirement है वो आज के बाद पूरी हो जाएगी. ठीक है. Skills का उसमें कुछ नहीं है. Skills is mainly if you start practicing is automatically your skills will start increasing. So the only thing which will remaining is कि यार आपकी training भी करवा दी, even if you're not doing it, then you're not doing it purposely, then that's a attitude problem. ठीक है. देन दैट नीड्स टू बी टेकन बाय केयर बाय द रिस्पेक्टिव मैनेजर्स की भैया आपको बता दिया ट्रेनिंग का व्हाट इज मिसिंग नाउ, व्हाई आर यू स्टिल नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट द जनरल, द ड्रेस कोड. ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एक सेइंग है कि द टेलर मेक्स अ मैन. ठीक है. कि आप क्या कपड़े पहन रहे हैं, हाउ यू गोइंग टू वेयर इट, ठीक है, विल डिसाइड is a big part of your personality. So when you are wearing a dress code, there are two things which need to be taken care of. One is that your attire should be professional. We're going to talk about what is a professional attire. Second is it should respect your institutional values. Okay. So whatever your organization stands for, nice, right? Okay, you need to know what are the value system. Whenever a lot of you people will be meeting outsiders, ठीक है, आप बाहर जो मिलते होंगे, you would be meeting people from other private companies, you will be making a lot of government officials, right? So when you're going over there, ठीक है, people don't know you. People know you as you're representative of the organization you're coming from. So when they meet you, it's not that they're forming perception just about you. आपके बारे में सिर्फ परसेप्शन नहीं बना रहे, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी परसेप्शन बना रहे हैं कि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं वो क्या है. एंड यू बेसिकली आप वहां पे जो जा रहे हो, आप प्रेम है, नेहा है, संजीव है, वो आपसे एसोसिएशन से ज्यादा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होके आपको वो बुला रहे हैं. इट्स अ पोजीशन विच यू आर होल्डिंग, राइट? सो व्हेन यू कैरी, तो वहां पे कल जब अगर इफ यू डोंट पुट अ गुड इम्प्रेशन ऑन देम, वो ये नहीं बोलेंगे कि यार ये प्रेम कैसे आया था, ये सुमीत कैसे कपड़े पहन के आया था. वो बोले थे यार ये इस आईसिक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज कैसे पहन के आए थे, बिल्कुल भी इन प्रोफेशनल नहीं लग रहे थे, राइट? सो दे वर नॉट प्रोजेक्टिंग द इंस्टीट्यूशनल वैल्यू. सो ऑर्गेनाइजेशन का एक गुडविल क्रिएट करने में, एक वैल्यू, एक आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो पैन इंडिया वर्क कर रही हैं, तो इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं. सो वो जो गुडविल क्रिएट हुई है, वो जो वैल्यू सिस्टम क्रिएट हुआ है, वो जो नाम क्रिएट हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, when you are going that, you are representation of all those things, all that goodwill that organization is created. So वो expectation रहेगी, वो आप किसी से भी मिलने जाएंगे, वो एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यार जब हम मिलेंगे किसी ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन से, दे विल कैरी दैट प्रोफेशनल एटीट्यूड, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू गोइंग आउट, आप अपने पर्सनल लाइफ में यू कैन बी एनीथिंग, आप घर पे जो चाहें कैसा पहने, नो प्रॉब्लम. बट व्हेन यू एंटर अ प्रोफेशनल स्पेस, राइट, फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर, मैं जब कॉर्पोरेट में था तो देयर वाज अ ट्रेनर हु हैड कम. ठीक है. एंड ही वाज एन एक्सीलेंट ट्रेनर. ही वाज being very participated. He was asking a lot of questions and everything. And I was like, yeah, wow, this is such a great trainer. So he asked
us one question. He said कि can you imagine how am I like in my personal life? And we were like, sir, आप ऐसे ही होंगे जैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपना. He said, no, I'm totally opposite of it. मैं बहुत ही एक इंट्रोवर्ट, बहुत ही रिजर्व पर्सन हूँ. व्हेन आई एम एट होम, आप शायद घर पे आएंगे भी तो मैं शायद आपको हेलो बोल के कमरे में चले जाऊंगा. कहता बट व्हेन आई एंटर प्रोफेशनल स्फीयर एज अ ट्रेनर, देन आई एम टेकिंग दैट रोल ऑफ एज अ ट्रेनर. देन आई चेंज माई सेल्फ कंप्लीटली. ठीक है, बिकॉज दिस इज माई जॉब एंड आई हैव टू बी ट्रू टू माई जॉब. सो आई अंडरस्टैंड व्हाट दैट रोल रिक्वायर्स. तो सेम थिंग हो सकता है. यू कैन बी अ लेजी ड्रेसर एट योर होम. आप, इट्स ओके वट एवर यूर डूइंग. But when you are entering a role in a professional capacity, you have to deliver as per that role. Okay, so let's look at what does it looks like. So normally an acceptable attire is a business casual, या उसको professional या attire को या business casual भी बोलते हैं. So men के लिए क्या होता है business casual, and I would want कि अगर आप नहीं कर रहे हैं, you can note this down. So either you're wearing pants or khakis. Okay. Lot of you would be wearing jeans, but it's a no. It's not a part of business casual. It is completely casual wear. ठीक है. मेरा काफी सारा जो कॉर्पोरेट वर्क रहा है वो हैज बीन इन रिटेल, सो एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री में रहा है. सो अगर आप सोचते हैं कि यार मैं जीन्स पहन लूं और उसके साथ शर्ट पहन लूंगा, नो. जीन्स इज अ कंप्लीटली कैजुअल वेयर. इट इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस कैजुअल. ठीक है. आप पैंट्स पहन सकते हैं और जैसे ज्यादा आप है आप खाकीज पहन सकते हैं, which is again semi casual, but yeah, business casual का part हो सकता है. Again, t-shirts are not part of business casual. Shirts are, you can wear a half sleeve shirt, you can wear a full sleeve shirt. अब मैंने देखा है, बहुत जगह पे देखा है कि लोग शर्ट पहनते हैं और ये जैसे शर्ट पहनी हुई है, इसको अनबटन करके they'll just roll it and keep it. ठीक है. और नॉर्मली उनका एक्सक्यूज होगा कि सर गर्मी हो रही थी इसलिए वो है. भाई गर्मी अगर हो रही है तो आप फिर शॉर्ट स्लीव्स पहनिए. ठीक है. बिकॉज इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल वो अगेन, ठीक है, इफ यू आर वेयरिंग अ लॉन्ग स्लीव शर्ट देन इट्स सपोज टू बी बटन. ठीक है. टाई इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. यू कैन पुट अ टाई, यू कैन लूज अ टाई. ठीक है. अनदर थिंग, बट व्हेन यू आर पुटिंग अ टाई, ठीक है, मैंने देखा है सुबह जब आते हैं लोग तो टाई एकदम अच्छी परफेक्टली बटन होके होती है. शाम तक होते होते टाई को क्या हो जाता है, ठीक है, 2 इंच नीचे आ जाता है. Again gives a very unprofessional look. ठीक है. You can wear sweaters, you can wear cardigans. Shoes very important. Sports shoes are not part of business casual. ठीक है. Some of you may have कि यार सर फुटवेयर मुझे प्रॉब्लम है लेग में, शूज में. You can go, मतलब there are brands, हर्ष पपीज है, काफी सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत सॉफ्ट कुशनिंग का देते हैं. You can go and wear that, or you can wear, आप ऑनलाइन एक्स्ट्रा सोल, कंफर्ट सोल ऑर्डर कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर वेयरिंग शूज एंड फॉर्मल शूज, ठीक है, इट्स नॉट बहुत डिजाइन वाले, बहुत फ्लैशी काइंड ऑफ शूज नहीं. इट हैज टू बी ब्लैक और ब्राउन इज द प्रेफर्ड वो. एंड ब्लेजर इज अगेन, अगर ठंड होती है तो देन ब्लेजर इज एन ऑप्शनल. ठीक है. ब्लेजर में भी आप, नेवी ब्लू इज ऑलवेज, इट्स बीन एन एवरग्रीन थिंग. आप, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ नेवल ब्लू ब्लाउजर. ठीक है. बाकी ट्वीट का आप जैकेट पहन सकते हैं. यस. देखिए अगेन जो स्केचेस जो है वो इट्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट शूज थिंग. तो कोशिश करें कि फॉर्मल वेयर के अंदर अगर आप है तो आपके ब्लैक और ब्राउन जैसे लेदर शूज जो हैं वही जो है कंप्लीटली फॉर्मल माने जाते हैं. ठीक है. अब थोड़ा सा उसके अंदर आपके आ गया है, देयर इज बीन अ मिक्सचर ऑफ स्केचेस एंड फॉर्मल शूज, वो भी बिजनेस कैजुअल में अलाउड है. बट कंप्लीटली स्केचेस और स्पोर्ट शूज विल गिव यू अ कैजुअल लुक. आप वो पहन के जाएंगे तो सामने वाले को दिखेगा. एंड सी दिस इज द थिंग, व्हेन ये क्यों होता है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन जो सामने वाले का पड़ रहा है वो आपके क्लोथिंग के कारण ही पड़ रहा है. बिल्कुल पड़ रहा है. ठीक है. आप वेदर यू बिलीव इट और नॉट, बट पीपल आर जजिंग यू बिकॉज ऑफ योर क्लोथ्स. So if you go wearing sport shoes, Skechers, and you go wearing with jeans, ठीक है, सामने वाला आपको कैजुअली लेगा ही एंड इट विल इम्पैक्ट हिज डिसीजन. ठीक है. एज कंपेयर टू वन somebody who is very formally dressed and comes with you, it automatically commands a respect. Okay. वुमेन के लिए अगेन दे कैन वेयर वेस्टर्न वेयर, ड्रेस पैंट, स्कर्ट्स, ड्रेसेस. ठीक है. इवन इंडियन वेयर सूट्स आर अलाउड. ठीक है. ब्लाउजेस, ड्रेस शर्ट्स और स्वेटर्स. अगेन ट्राई टू वेयर क्लोज टू शूज. ठीक है. और फ्लैट्स. ठीक है.
heels should be low to moderate, and again blazers and tailored jackets are allowed to them. ठीक है. फीमेल्स के लिए एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा इज अबाउट द यूज ऑफ ज्वेलरी. सो little bit of jewelry is okay, ठीक है, even recommended, but make sure it's not flashy, it's not too big in size, ठीक है, it does not attract too much attention to you. Okay. Both for men and women, too much of tight fitted clothes, too much of baggy clothes, again, do not give a professional look. Okay. Certain guidelines which are to be followed is avoid overly casual clothing like jeans, t-shirts and sneakers. Okay. Maintain neatness and cleanness, very very important, right? आप कपड़े पहन रहे हो but आपने पहना हुआ, if you maybe there's a dress which you're wearing it for once more, it's okay, but if you're doing it, make sure you press it, it is well fitted and clean. ठीक है. आप आ रहे हैं और उस पे दाग लगे हुए हैं या कुछ हुए हैं, इट्स नॉट प्रॉपरली प्रेस, ये सब सामने वाला देखिए सबकॉन्शियस लेवल पे दैट पर्सन इज गोइंग टू जज यू. ठीक है. अगर उसको दिख रहा है ये अनप्रेस करके आया है, ये वेल लूज फिटेड क्लोथ्स पहने, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन विच यू आर गिविंग अबाउट योरसेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. if you are in organization ISEC में you interact with students and everything, so बहुत perception follow करता है कि जो आपके या फिर even जो juniors हैं, तो senior managers who are in people reporting to them, you are role modeling for them, they're going to look at you, and that perception is, if you're dressing very professionally, it adds to your image also. Okay. Question. Some exceptions and flexibility are required. ठीक है. अगर कोई occasion है, ऑफिस में सेलिब्रेशन हो रहा है और आप अपना रीजन का क्लोथिंग पहन के आना चाहते हैं, दैट इज देन एज पर द कंपनी पॉलिसी. कि अगर कंपनी पॉलिसी अलाउ करती है कि यार आज ऑन स्पेशल ओकेजन और फेस्टिविटीज में आप जो है कैजुअल क्लोथिंग पहन के आ सकते हैं, और यू कैन वेयर फेस्टिविटी क्लोथीज, कुर्ता पजामा हो गया, एथनिक वेयर हो गया, that is required, but then only in special circumstances. It can't be a guideline that आप रोज पहन के आए. ठीक है. Individuals, some people like making some individual style statements, ठीक है, within dress code, जो मैंने बोला, uses of jewelry या कुछ आप बैचेस लगाना चाहें and everything. ठीक है. But make sure it doesn't become too flashy, it does not take away from your look of your professional attire. तो you can try even for girls जो होते हैं different kind of hairstyle, but again keep it in that professional domain. ठीक है. अगर जहां डाउट लग रहा है, अपने किसी कलीग से आप पूछ लें कि यार ये ज्यादा फ्लैशी तो नहीं लग रहा, कुछ तो नहीं लग रहा, बिकॉज there's a famous saying, always get only the one chance to make the first impression, right? आपका first impression 2 बार नहीं हो सकता, and clothing is a very very big part of making that impression, so make sure that you adhere to it. Okay. पंक्चुअलिटी, अब बहुत अगेन बेसिक सी चीज है यार, पंक्चुअलिटी के बारे में हमें क्यों बता रहे हैं, राइट? तो हमारे यहाँ एक चीज जो यूज होती है, वी यूज अ टर्म कॉल्ड, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है एंड देयर इज अनदर IST. क्या बोलते हैं दूसरा IST को इंडिया में क्या यूज होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट इज अदर जो मजाक में यूज करते हैं? एनीवन? IST को क्या बोलते हैं? एनीवन? इंडियन डैश टाइम, इसको कुछ वर्ड यूज करते हैं हम लोग. मजाक मजाक में भी से इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम. ठीक है कि यार ठीक है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गए तो क्या हुआ, कुछ नहीं. ठीक है. बट बेनिफिट्स हैं पीपल हु आर पंक्चुअल. क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिल्ड्स अ रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल इमेज ऑफ यू. ठीक है. आप जो भी लोग पंक्चुअल आते हैं, ऑटोमेटिकली उनका परसेप्शन जो है वो दूसरों से बेटर हो जाता है कि दीज पीपल आर पंक्चुअल. दैट मीन्स कि दे आर मोर डिसिप्लिन्ड इन लाइफ एज कंपेयर टू अदर्स. सेम चीज, their productivity and efficiency will be more. ठीक है. Plus, seeing people who are punctual, it will foster a culture of discipline and respect around you, and creates a lot of trust and credibility in you. ठीक है. So if you are in an organization, right, bosses, remember this, bosses will always note people who come on time. Always. जब भी कभी आपका अप्रेजल हो रहा होता है या if a person is judging you, punctuality is something which they will keep in mind.
ठीक है, कि हु आर द पीपल हु टेक टाइम कैजुअली, ठीक है, आपने अगर समय की आप कदर नहीं कर रहे हो तो दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ओके, जो नहीं है कॉन्सिक्वेंसेज, जो अनपंक्चुअल हैं, जो आर नॉट पंक्चुअल, उनके कॉन्सिक्वेंसेज ऑब्वियसली होते हैं। ऑब्वियसली योर वर्क विल गेट अफेक्टेड इफ देर आर पीपल आर डिपेंडिंग ऑन यू टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, और अगर आप ही लेट कर रहे हैं सो दैट विल अफेक्ट द फ्लो ऑफ वर्क। ठीक है, टीम डायनेमिक्स पे बहुत फर्क पड़ता है कि इफ यू आर अ टीम एंड आप बीच में लेट आ रहे हो, मीटिंग्स आर गेटिंग लेट बिटवीन यू, दैट क्रिएट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव सिनेरियो। ठीक है, creates a lot of potential loss of opportunities for you। ठीक है, why? Because कहीं पे अगर कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई प्रमोशन आ रहा है, समथिंग इज कमिंग इन देयर, तो लोग बोलेंगे, बिल्कुल बोला, यार उसको मत भेजो यार, वो हमेशा बहुत लेट करता है, या ना उसको मत भेजो यार, वो काम सही से नहीं करता सबमिट। सो इट विल, सो आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, जो प्रमोशन मिल सकते थे, दैट विल आपको, यू विल बी लेफ्ट आउट with those opportunities for the fact that you are not taking care of time. And it's just not the time factor, it talks about the kind of personality you are carrying, that if you can't respect time, then you will not be respecting other things as well, right? And overall, within an organization, if a culture is kind of set, it cannot, it's not maybe an organizational culture, but it is a sub organization culture कि इस ऑफिस में लोग जनरली लेट आते हैं। ठीक है, सो उस ऑफिस का भी देन मोरल और ट्रस्ट जो है वो बहुत लो रहेगा। ठीक है, सो मेक श्योर दैट कि आप में से जो है, अब कैसे करें, सम पीपल बोले यार सर हम तो कोशिश करते नहीं करते। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज है, दिस, you need to prioritize your work. You need to prioritize your work. I long back I read a book called Selfienomics, right? And उस book में उसने एक चीज जो बोली थी, one thing that guy had written was amazing. He said that never say मेरे पास टाइम नहीं, always say मेरी ये प्रायोरिटी नहीं, because if it is your priority you will make time for it। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ऑफ यू पीपल गो फॉर अ वॉक, एक्सरसाइज, a lot of you men can say कि सर नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम, right? But tomorrow if your doctor says you're a borderline diabetic, or your borderline blood pressure, borderline cholesterol, if you start working out from tomorrow, then the consequences will be severe for your health. I'll have to start put you on medication and everything। आप क्या करोगे? आप टाइम निकाल के एक्सरसाइज करोगे ही करोगे। इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए नहीं थे कि टाइम नहीं था, बिकॉज इट वॉजंट योर प्रायोरिटी। Now that the doctors has told you, no, this needs to be done, otherwise there are severe consequences. So people who come late or are not punctual is that, they're clear and cut dikh raha hai ki their priority is not work. So the first thing you need to, and this is the perception which gets carried over to your managers, to the organization. If you are not respecting time, that means you are not prioritizing work, you're not the organization. Otherwise, you would have made time for it. Sumita ma'am, can you please mute your mic? Okay, thank you. ठीक है, another thing to punctuality is obviously आप prioritize करने के बाद you will have to plan and organize your task in advance, right? All of you would be carrying smartphones, right? ये तो पूरा का पूरा कंप्यूटर है हमारे हाथ में। ठीक है, इट्स अ प्लानिंग मैनेजर फॉर अस, राइट? सो देयर आर टू टूल्स जो बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। वन इज गूगल कैलेंडर, विच आई यूज इट। ठीक है, इट गेट्स सिंक्ड विद योर ईमेल एंड एवरीथिंग। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल करिए। जो भी मीटिंग्स हैं उसके अंदर शेड्यूलर डाल के रखिए। ठीक है, आप यू कैन शेड्यूल, इट विल गिव यू अ रिमाइंडर 30 मिनट्स पहले कि आपकी ये मीटिंग आ रही है। इट विल, आप डाल रहे हैं, यू विल नेवर ओवरलैप टेक टू मीटिंग्स टुगेदर, because the moment you're putting in Google Calendar, it will show कि आप already इस टाइम से इस टाइम तक आप occupied है। ठीक है, so Google Calendar or another calendar app, whichever you are using, if you have Apple phones, you can use their calendar app, but it's an amazing app to use to plan and organize tasks. Second is the to-do list। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, चाहे एप्पल या गूगल के प्ले स्टोर पे, just type to-do list, you will see a number of apps which are to-do list। सो ये दो चीजें जो हैं वो मेरा ये, अगर आई यू कैन सी इट, देयर इज अ टू डू लिस्ट ऐप। ठीक है, ये टू डू लिस्ट है एंड दिस इज द कैलेंडर। ठीक है, विच शोज बेसिकली कि क्या ट्रेनिंग्स हैं, और जो है मेरे आई एम इन थेरेपी ऑल्सो,
तो मेरे क्लाइंट्स के अपॉइंटमेंट रहते हैं, तो ये दोनों, एंड आई हैव जस्ट अ सिंपल स्क्रीन, मेरे उसमें सिर्फ 3 स्क्रीन है, एक जो एप्स विच आई यूज, द सेकंड इज द टू डू लिस्ट एंड द थर्ड इज द गूगल ऐप, द कैलेंडर ऐप। सो अगर आप नहीं यूज कर रहे, सो प्लीज आई आई इम्प्लोर यू, इसको अभी आप नोट डाउन कर लीजिए कि यार एक गूगल कैलेंडर मेरे को अपना होम स्क्रीन पे इंस्टॉल करना है, एक टू डू लिस्ट ऐप इंस्टॉल करना है, and you will see how much your productivity increase, how much your time management increases, and that you will be so punctual. Okay, so can we do that? Can all of you promise me that from now onwards you will have Google Calendar and a to-do list app on your phone? Yes, sir. Yes, sir. Great, great. ठीक है. So once you have the apps, then it becomes easy to just set reminders and alarms on your phone. So मेरे medications के, मेरी चीजों के, इनफैक्ट आप सोचो अभी जैसे आई हैव एन LIC पॉलिसी, अब वो LIC पॉलिसी हर साल का मेरा रिमाइंडर सेट है, अब मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ता कि यार कब LIC पॉलिसी ड्यू डेट आएगी। द मोमेंट आई गेट माई क्रेडिट कार्ड बिल, आई सेट जैसे 15 की डेट है अगर भरने की, तो एक दिन पहले का आई सेट अ रिमाइंडर कि इस दिन को इतना क्रेडिट कार्ड का भरना है। So you once you're using this, ठीक है, you will be like यार my life has become so easier, I don't have to hold anything, दिमाग में कुछ नहीं रखना पड़ता, I'm using this tool, ठीक है, ठीक है। Allocate buffer time, so I do that कि मैं end of the weekend जो है I keep my schedule open कि यार पूरे हफ्ते में अगर कुछ कुछ काम अगर नहीं हुए थे, जो चीजें नहीं हुई थी, I'll complete them over the weekend, so I keep buffer time जो करने के लिए। अगर आप घर से निकलते हैं, ठीक है, यू नो कि यार बीच में ट्रैफिक हो सकता है, देन कीप सम बफर टाइम, इट्स ओके। लाइक फॉर एग्जांपल आई आज यहाँ ट्रेनिंग के लिए आना था, सो आई लेफ्ट एज सच कि अगर बीच में ट्रैफिक भी हो जाए, इवन देन आई विल रीच 15-20 मिनट्स बिफोर, right? And I was here 20 minutes before the scheduled time, so we had enough time to set up things and everything, right? So always important, always better to reach before time than late. Okay. Last is ki if you are, for some reason, if you are running late, please inform, please inform. It just takes a minute to drop a message or a WhatsApp message, और अगर हो सकता है कॉल नहीं उठा रहा हो, but just take a minute to message ki sorry ma'am, sorry sir, I'll be 5 minutes, 10 minutes late. ठीक है. What does it show? It shows that you are taking responsibility. It shows that you're taking responsibility. ठीक है. So ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत छोटे छोटे मार्कर्स हैं, राइट? ठीक है. So how you treat time speaks volumes about your personality and who you are, right? And I always feel this, and I've done this in my organization, right? When I used to work in corporate, कि जो मेरे juniors थे, जो time को respect नहीं करते थे, I always used to judge them on the fact that if they cannot respect time, they will not be good managers tomorrow. Okay. Any questions on this? I hope everybody has noted that Google Calendar and to-do list thing. Okay. Okay. This is another thing which is basic, and I've in the past I've done trainings for people in the Northeast, and this is something. Um, my wife is also a fellow trainer. She's actually been to Northeast for quite a number of trainings, and she's also given me this feedback, and I have also personally seen that. Okay, this is something, respect for your co-colleagues, okay, in terms of the language and the tone they use. I feel it is very much present in the Northeast. Okay, how much they respect each other, even at different levels. So अगर आपके कोई junior होगा, I've seen director level, principal levels in ITIs, and talking to the faculty or talking to the junior staff, but इतना respect और उसके अंदर वो है कि they are very respectful in the language, so that is amazing. Okay, so if you have that in the organization, nothing like it. It fosters a very positive work environment, teamwork or collaboration बढ़ जाता है. I've seen a lot of teamwork and collaboration in the Northeast teams. एक भी किसी की problem होगी, the entire team sees it as their problem. They'll be there for them. कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, नहीं करेंगे. Promotes a lot of mutual understanding and trust among the team. Okay, so hats off to people in Northeast. You're doing a great job when it comes to being respectful to others. But still, some pointers if which can be improved on.
So अगर है कहीं से भी, avoid offensive or discriminatory remarks. It can be, so people can have different value system, people can have different belief systems again than you. It's okay. People don't have to follow what you believe in. Okay, so we have to be respectful to their, आपको उसको उसके जैसे बनना नहीं, उसकी चीजों को फॉलो नहीं करना, बट एटलीस्ट शो रिस्पेक्ट एंड गिव देम देयर स्पेस टू फॉलो. लिसन एक्टिवली एंड अटेंटिवली अगर कोई अपना पॉइंट रेस कर रहा है, ठीक है. बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज. सो जैसे ही कोई कुछ हमें कभी कोई ऑफेंड कर देता है तो हमारी टोन एकदम से जो है चेंज हो जाती है. वी काइंड ऑफ बिकम वेरी, क्या बोलते हैं, वेरी एट टाइम वी कैन बिकम डिफेंसिव एंड अटैकिंग ऑल्सो इन अ टोन. ठीक है. इफ यू हैव टू, अगर आप, इफ यू आर वर्किंग इन टीम्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव फीडबैक. ओके, बट ट्राई टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ठीक है. What is constructive feedback? Anyone? What is constructive feedback? What do we mean by when we say constructive feedback? क्या होता है constructive feedback? Anyone? Like to take some time on this? Can we have your videos on, please? Can we have your videos on? Thank you, Shivani. Thank you, Lilima. Thank you, Toito. Thank you, Guria. Thank you, Miss Joshi. Thank you, Archana. Thank you, Neha. Thank you, Leena. Thank you, Dhruva. Thank you, Nobir. Thank you, Lima Kumla. Thank you, Kumarpati. Thank you, Devi. Okay, great. Thank you. Okay, so what do we mean by constructive feedback? This is a very, very important part of general etiquettes. We have to give feedback to people, right? पर हम कभी भी जब किसी को feedback देते हैं, how do they take it? Whenever we give feedback to people, do they take it positively or they become defensive? Positive feedbacks. पॉजिटिवली लेते हैं लोग या नहीं? आपको अगर कोई फीडबैक दे तो आप पॉजिटिवली लेते हो या आप हो जाते हो यार हमारे बारे में कोई बुराई करे तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? नहीं सर, कुछ लगता है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा तो कुछ अपनाना चाहिए, अपने अंदर अपनाना चाहिए इस चीज को. ठीक है. सो जो people who are evolved will take it, but generally जो humans, since I am a psychologist as well, जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आपके सामने वाला कोई बुराई करता है तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है. कई बार हमें लगता है यार खुद को तो देख ले, मेरे बारे में बोल रहा है, तेरे अंदर तो 10 बुराइयां हैं, मुझे क्या अपनी बुराई दिखा रहा है? यस और नो? राइट. एंड दिस इज देयर. ठीक है. एंड दिस इज देयर. सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू नो हाउ टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, दिस विल नॉट हैपन. ठीक है. सो व्हाट आर द थिंग्स, अगर हम लोग किसी को फीडबैक दे रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल give feedback about their behavior, not about them. ठीक है. For example, if you're saying कि let's say Sumit, I've observed that from last few days you've been coming late. I'm giving feedback about his behavior and giving an example in that. As compared to that, अगर मैं बोलूं यार सुमित तुम बहुत लेट लतीफ हो, या सुमित तुम बहुत कामचोर हो, do you see the difference? In the first case, I was giving feedback about behavior. In the second case, I'm making it personal. First case, I'm saying I've observed that you've been coming late. And the second, I'm saying तुम late लतीफ हो या तुम कामचोर. That becomes personal, right? And some people say, नहीं तुम तो हमेशा ही late आते हो. Now you are exaggerating things. Obviously, वो person हमेशा late नहीं आता. So when you're exaggerating, you're giving personal comments, the person will become defensive. So when you're giving constructive feedback, very, very important. First thing, observe सामने वाले का mood कैसा है. He should be in a normal mood. उसका ऐसा नहीं हो कि लड़ाई हो रही हो, खराब मूड में, उस टाइम पे आप फीडबैक दे रहे हो. Not be in a right mind space to take it. First thing, give feedback about behavior. Use examples. See, this is, देखो कल तुम आए थे, कल 9:10 पे आए थे, परसों 9:15 में आए थे. ठीक है. Now you're giving examples now, right? ठीक है. And giving very specific example, right? Also tell them कि when you do this, what is the impact of it? यार जब तुम लेट आते हो ना तो उसके कारण फिर सारा काम आगे का डिले हो जाता है. दिस इज देन. ठीक है. सो व्हेन यू आर गिविंग दिस एज कंपेयर टू इफ यू से यार तुम हमेशा लेट आते हो, बहुत ही लेट लतीफ आदमी हो यार, और तुम्हारे कारण कोई काम नहीं हो पाता. आई हैव गिवन अ वेरी जेनरिक, वेरी पर्सनल, स्पेसिफिक एंड एग्जैजरेटेड. प्लस सेइंग ऑफिस में सब लोग मानते हैं तुम में और कामचोर इंसान.
obviously the person will get very offended and will आपको 10 चीजें सुनाएगा, अरे तुम अपने आप को देख लो नहीं, ठीक है. सो टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब लिख लो, इस चीजों को लिख लो. फीडबैक मुझे बिहेवियर के बारे में देना है, पर्सन के बारे में नहीं देना. द मोमेंट आई से इट अबाउट द पर्सन, ही विल टेक इट पर्सनली. बिहेवियर बोलो कि किस बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम, राइट. सेकेंडली, टॉक अबाउट योर सेल्फ ओनली, कि मैंने ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया है. तीसरा, गिव एग्जाम्पल्स. देखो, और आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी आप यूज कर सकते हो. इट वर्क्स बोथ वे. ठीक है, आप अपने स्पाउसेस, बच्चों को, किसी को भी ये फीडबैक देना हो, इफ यू गिव इट दिस वे. वहां में भी आदत होती है, वी जनरली वी कमेंट, हम लोग कमेंट्स मारते हैं जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाता है, एंड देन दे गो इनटू अ स्पेस, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजी हम लोग पेरेंट ईगो स्टेट बोलते हैं, उसमें चला जाता है, एंड दे आर नो लॉन्गर लिसनिंग टू यू. ठीक है, सो बी स्पेसिफिक, गिव एग्जांपल्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ द बिहेवियर, टॉक अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, एंड डोंट एग्जैजरेट. सो इस तरीके से जब आप दोगे सामने वाले को बिठा के, एंड इट हेल्प्स इफ यू आस्क देम एंड सेड कि यार सुमित, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे. द मोमेंट यू से दिस, ठीक है, people will put their guard down. क्यों? Because you have taken their permission to give them to give feedback to them. कि सुमित, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप कुछ बुरा तो नहीं मानेंगे. The moment you say that, they will take it nicely. अच्छा, इसने मुझसे परमिशन मांगी है मुझे फीडबैक देने की, इनसे कि नहीं नहीं ठीक है, आप बताओ क्या करना. Then you follow these guidelines of giving constructive feedback. You'll say कि okay, ठीक है, this is good and I'll surely work on it. Okay, okay, great, thanks. Chalo, let's move back to the PPT now. So is it clear? Any questions on this? Asking constructive feedback, anyone? Clear है? ठीक है? Great. तो नेक्स्ट टाइम, अच्छा नेक्स्ट टाइम आपको कोई फीडबैक देगा तो आप क्या करोगे? क्योंकि उसने तो ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, तो वो सीधे आके बोल सकता है यार तुम बहुत लेट लतीफ हो. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन समबडी गिव्स यू फीडबैक, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड यार ये मेरे फायदे में है, बिकॉज आई गेट टू improve myself, right? So you can ask them questions. अच्छा, why do you think I'm late, Latif? Can you give me examples? Can you tell me मैं कब लेट आया था, right? तो अगर कोई सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है और उसको एग्जांपल्स नहीं है, you can very well say यार next time when you have examples you can always come back to me, but I need proof to take this, otherwise it's just an opinion from your end. ठीक है, so you are entitled to your opinion, but unless and until I get proof about it, have examples to it. So next time when I'm doing this, please come and tell me. I would surely like to improve myself. Okay, so you can ask questions to them as well. क्लियर. सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे अगर हम लोगों को बोलना है लोगों को. सो इंस्टेड ऑफ बोलना यू आर रॉन्ग, ठीक है, आप बोल सकते हो या आई सी योर पर्सपेक्टिव बट मे आई ऑफर अ डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट व्यू पॉइंट. ठीक है, आप इंस्टेड ऑफ बोले यार तुम गलत हो, उसकी जगह बोले यार ठीक है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव तुम्हारे हिसाब से होगा, पर क्या मैं अपना व्यू पॉइंट दे सकता हूँ. और सेइंग यार ये बहुत ही घटिया आइडिया है, दैट्स अ टेरिबल आइडिया. इंस्टेड से या आई अप्रिशिएट योर इनपुट बट लेट्स एक्सप्लोर अदर ऑप्शन. यार ठीक है, तुम्हारा आइडिया अच्छा है बट हमको लगता है, मुझे लगता है कि अपन को और ऑप्शंस भी देखने चाहिए. सो दिस इज अ चेंज ऑफ हाउ यू कैन चेंज योर टोन एंड लैंग्वेज सो दैट पीपल बिकम easier to talk to, ठीक है, and they become more friendly to you rather than defensive. ठीक है, okay. So ये अभी हमारा we have just covered with the general etiquette part. ठीक है, we are moving to the second part which is called meetings. So ठीक है, how many meetings do you have in a week? How important are meetings? Cameras on please. How important are meetings in your work sphere? कितनी मीटिंग्स होती हैं? रोज होती है मीटिंग, हफ्तों में होती है, क्या होता है मीटिंग्स का? टेल मी. Weekly. Sorry, come again. Weekly. 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 Once in a week. Yeah, once in a week. Okay, that's it. So other than that, anybody who has a lot of meetings? कि सर मेरी तो मीटिंग्स ही होती रहती हैं. Just the weekly meetings? Okay. So how do you find the meeting? You find it a waste of time? You find them कि नहीं good sir जरूरी है meetings? Sir, it's important to It's important, right? We cannot function without doing meetings, right? Many of you here who have some team reporting to you, who have people below you. Anyone who has a team below them?
Anyone? Okay, ठीक है. So when you go for a meeting, how do you plan for your meetings? अच्छा, मीटिंग का पता कैसे चलता है? इज इट लाइक हर हफ्ते एक डेजिग्नेटेड टाइम है जब मीटिंग होती है, और यू गेट एन ईमेल और रिमाइंडर और समथिंग दैट देयर इज अ मीटिंग? It varies. सॉरी, It varies. डेली, किसी की डेली होती है. ओके ओके. व्हाट अबाउट द वीकली मीटिंग? इज इट डिसाइडेड फ्री हैंड कि हर हफ्ते जैसे फ्राइडे को मीटिंग होना है, और यू गेट अ मेल? हाउ डज इट हैपन? चंद्रसेन, आप अपना, या एनीवन मीटिंग्स के आपको पता कैसे चलता है मीटिंग है? Sir, mail के through. मेल के थ्रू. अच्छा, तो मेल में जब आता है बिशल, जब मेल आता है आपको मीटिंग का, तो उसमें क्या क्या मेंशन होता है? Sir, time और link. मीटिंग का. ओके. व्हाट एल्स? एनीबडी? इसके अलावा कुछ और मेंशन होता है किस बारे में Date. मीटिंग? कुछ डेट एंड Date. टाइम. जी सर. और डे. Sir, day, time and link. डे, टाइम एंड लिंक. ओके. और डिटेल्स मीटिंग के बारे में कुछ Yes, sir. क्या? तो मीटिंग एजेंडा भी शेयर करते हैं. मीटिंग एजेंडा भी शेयर करते हैं. ग्रेट ग्रेट, ठीक है. सो ये चीज जो है, और हर जगह हर बार मीटिंग का एजेंडा शेयर नहीं होता है, विच इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. सो वील गो टू नाउ द आइडियल वे कि जो है मीटिंग्स को कैसे करना चाहिए. ठीक है, वील लुक एट दैट नाउ. सो इफ आउट ऑफ दीज थिंग्स, इफ यू आर डूइंग इट, एक्सीलेंट. पर आउट ऑफ दिस थिंग्स इन द स्लाइड, इफ यू सी कि यार ये चीजें हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है, सो इट कैन बी एन ओवरऑल एटिकेट फॉर द एंटायर मीटिंग, और इट कैन बी टारगेटेड टू इंडिविजुअली टू यू कि यार ये मेरा रोल होना चाहिए मीटिंग में, और ये मैं नहीं कर रहा या नहीं कर रही, देन व्हाट शुड आई डू? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ठीक है, सो लेट्स लुक एट two scenarios. The first scenario is you had no idea what would be so a meeting is scenario है, so you had no idea what would be discussed because you did not get an agenda prior to the meeting. ये होता है कभी कभार कि मीटिंग में आप चले जाते हो पर एजेंडा पता ही नहीं होता, राइट? ठीक है. Several staff members were absent either due to illness or vacation, or maybe they just plain forgot. ठीक है, कुछ होता है, कुछ लोग भूल गए और पता ही नहीं, तो 30 लोगों की मीटिंग है पर 10-15 जने आए हुए हैं. Those who did attend each arrived a few minutes late and brought their phone or tablet with them. They occasionally pulled out their device when they didn't feel like listening to the speaker and wanted to check their email. Why not multitask, right? The meeting also went over the scheduled time and took up most of the morning. ठीक है, ये सिनेरियो 1 है. ठीक है, इस टाइप की मीटिंग्स अटेंड करी हैं आपने? करी हैं ऐसी मीटिंग्स? हाँ, मुझे कुछ मुंडिया हेल्थ भी दिख रही हैं, तो यस. ओके, नाउ लेट्स लुक एट सिनेरियो 2. A couple of days before the meeting, you got the agenda outlining topics that would be discussed. Every staff member showed up for the meeting on time and no one was absent or late. During the meeting, everybody paid close attention to whatever was being said. No one was distracted by their phone or tablet because they chose not to multitask during the meeting. The meeting was also short, only 30 minutes, and it ended on time. Right? So, which scenario meeting would you like to attend? The 1 or the scenario 2? कौन सा वाला अटेंड करना चाहेंगे, 1 या 2? 2, sir. Everyone 2, right? ठीक है, but obviously जो 2 वाला हुआ है, everybody wants to have that, but lot many times you would see जो scenario 1 में points थे, those are the kind of things which you see in the meeting. So how to conduct scenario 2 meeting is requires preparation for before the meeting. Okay, so what are the things? क्या करना है? पहली बात, identify the purpose of the meeting. Very important. Just don't have meetings for the sake of meetings. अगर आपकी weekly meetings भी है, and if there's nothing to be discussed, you can say that कि यार इस हफ्ते मीटिंग नहीं है, we'll keep it next week. Okay,
So only if there is a definite purpose, otherwise it's a waste of time for the organization, for the people involved. Very, very important. There has to be an agenda for the meeting and it has to be sent across. मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा आगे, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, जब एजेंडा डिसाइड हो जाता है उसके बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए. सो फॉर एवरी मीटिंग जरूरी नहीं है कि आप सारे पार्टिसिपेंट्स को बुलाओ या सारे ऑफिस को बुलाओ. नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल्ट कि यू हैव बीन इनटू अ मीटिंग और आपको कुछ कंट्रीब्यूट करने का नहीं था, आपके डिपार्टमेंट से कुछ रिलेटेड नहीं था, एंड यू वर जस्ट सिटिंग देयर. हुआ है या नहीं हुआ कितनी बार? एंड यू वर लाइक यार मुझे क्यों बुला लिया इस मीटिंग में, मेरी तो जरूरत नहीं. हैज इट हैपेंड और नॉट? राइट, हैज इट हैपेंड? राइट. सो वहां पे जरूरी होता है टू हैव दिस थिंग कि राइट कि द पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग मेक श्योर दैट एजेंडा बनाने के बाद कि किस किस की जरूरत है. ठीक है, आई एम शेयरिंग अ सैंपल एजेंडा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इसका आप ले सकते हैं. ठीक है, कि आप जो है मीटिंग एजेंडा की डेट टाइम लोकेशन भेजना बहुत जरूरी है. ठीक है, when you start the meeting you do a call to order which is about welcome and introductions like मैम ने किया. ठीक है, she welcomed me, she gave introduction about me. ठीक है, यहाँ पे कोई previous meeting नहीं थी. अगर previous meeting होती है तो उसके जो meetings के minutes होते हैं उनका approval लिया जाता है. ठीक है, once that is done you discuss about old business कि पुराना क्योंकि जो प्रीवियस मीटिंग में हुआ था, जो वर्क असाइन किया था उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें बची हुई हैं, यू फर्स्ट डिस्कस दैट एंड यू क्लोज दैट. वंस दैट इज डन देन द न्यू बिजनेस थिंग्स विल बी डिसाइडेड. These should always be a part of when you're sending the agenda so that people who are there, they know what are the things which are going to be discussed about the things. ठीक है, then the new businesses, अगर कोई presentation है उससे related, discussion will happen on any other new discussions businesses need to be discussed. Once you have done that, then an open discussion for everyone की जो डिस्कस किया है उसका प्रेजेंटेशन था उसके रिलेटेड कुछ है, कुछ एडिशनल कंसर्न जो एजेंडा का पार्ट नहीं थी बट यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट एंड यू वांट टू डिस्कस. ठीक है, once that is in, the action items are to be discussed to assign task and responsibility and setting deadline for action item. Then finally the next meeting is decided कि कब है, a date has to be decided or told that you will get a reminder about you will get a schedule about the meeting as and when it is decided, and finally that judgment done. तो आप जो है इसका मीटिंग एजेंडा, take a screenshot of this on your phone, on your, keep it. Next time you are sending a meeting schedule, you send an agenda along with it. ठीक है, अपने एंड पे आपको क्या करना है once this is done. Also important, अगर आप मीटिंग्स के अंदर if you can assign roles. ठीक है, तो one person can become a facilitator. ये जनरली होता है, somebody who's taking the call for the meeting, who's guiding the meeting. एक टाइम कीपर रखें, ये नहीं होता. You have seen people not doing that. A timekeeper who gives the pointer, you know, we have kept a 30 minutes meeting, we have already down by 10 minutes, we just have 10 minutes left. Otherwise क्या होता है, one person can just go on a roll and he starts talking about वो एक चीज से दूसरी चीज पे जाते जाते, you know, he takes most of the time of the meeting and you already, before you already know, you already just have 5 minutes left for the meeting. So a timekeeper can keep a tab on that. A minute taker who records the meeting. ठीक है, experts who can, again for the experts, जरूरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप 30 मिनट्स, एक घंटे की मीटिंग है, उसमें आप फर्स्ट 20 मिनट्स कुछ डिस्कस करने वाले हो, नेक्स्ट 20 मिनट्स कुछ डिस्कस करोगे, लास्ट में 20 मिनट्स. हो सकता हो जो फर्स्ट 20 मिनट्स वाला एक्सपर्ट हो उसके बाद रेस्ट 40 मिनट्स में उसकी जरूरत नहीं है. सो ही और शी कैन बी एक्सक्यूज, दे कैन बी एक्सक्यूज फ्रॉम द मीटिंग. सर आपका रोल हो गया, आपने जो देना था, नेक्स्ट 40 minutes we are going to discuss something else which is not part of your domain, so you can go back to work. Right, so very important, these kind of things can be managed. Okay, next, be aware about कि meeting कहाँ होगी. कहीं I've seen in offices what happens is double booking हो जाती है कि conference room एक है और उसी में 2 टाइम पे होगी. So इसको भी if it you can use the help of technology in IT कि इसको कहीं पे आप ERP पे डाल के रखें, एंड गूगल कैलेंडर की अगेन ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द अवेलेबिलिटी. ठीक है, इन टाइम जितनी जल्दी हो सके इन्विटेशंस आप टाइम पे पहले भेज दीजिए, नॉट एट द लास्ट मोमेंट. ठीक है, इफ देयर एनीथिंग टू बी रेड, एनी प्री रीडिंग्स, एनी रिपोर्ट्स, प्लीज सेंड देम अलोंग विद द मेल कि प्लीज जब आप मीटिंग में आएंगे तो ये रिपोर्ट्स पढ़ के आए. ओके, अगर कोई इक्विपमेंट है, ठीक है,
which have to be used. Mic arrangement है, LCD है, presentation है, projector है. Please ask your IT team और the admin staff कि वो make sure करें कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब लोग वहां आ गए उसके बाद उसकी टेस्टिंग हो रही है. You're wasting valuable time and resources of the company. ठीक है, ठीक है. And make sure you distribute agenda to all participants before the meeting. Last which comes is कि अगर आप मीटिंग में जा रहे हो then you also need to prepare also. ठीक है. How you can contribute and collaborate in meetings is firstly always arriving on time. ठीक है. आप सोचते हो यार क्या हो गया, मैं 5 मिनट तो लेट हो गया. ठीक है. बट अगर उस मीटिंग में 10 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं तो आपने टोटल कितना टाइम वेस्ट किया, कितना टाइम वेस्ट किया. आप 5 मिनट लेट आए पर लोग आपका वेट कर रहे थे मीटिंग के लिए, एंड देयर आर 10 पीपल वेटिंग फॉर यू. हाउ मच टाइम डिड यू वेस्ट इन ऑल? 50 मिनट्स, राइट? सबका मिला के आपने टाइम वेस्ट किया. बिफोर गोइंग नो व्हाट इज द एजेंडा सो दैट यू कैन प्रिपेयर. ठीक है. एक्टिवली पार्टिसिपेट विदाउट डोमिनेटिंग. ऐसा नहीं है कि आपको मौका मिला है तो यू आर द ओनली वन हु कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट. ठीक है. कीप इट ओपन, गिव अदर्स आल्सो चांस टू से, बट आल्सो कंट्रीब्यूट ऑन योर. ठीक है. कीप योर मोबाइल फोन्स, ईमेल्स ऑन साइलेंट फोन. ठीक है. आपने मीटिंग के लिखा हुआ है. ठीक है. पहले सेल फोन्स नहीं होते थे तब भी चलता था. एंड दैट्स द रीजन मोर इम्पोर्टेंट कि आपने जो टाइम दिया हुआ है शेड्यूल टाइम फॉर द मीटिंग्स, यू कीप इट एट दैट लेवल. आप उसको क्रॉस नहीं करें. ठीक है. इफ यू गिवन 30 मिनट्स फॉर द मीटिंग, यू कीप इट एट 30 मिनट्स. ठीक है. बी ओपन टू द व्यूज एंड ओपिनियंस अदर्स. डोंट स्टार्ट dominating others over there. आवाज लाउड नहीं करें वहां पे. गिव पॉइंट्स इन अ वेरी वेरी नॉर्मल वे. शेयर द वर्कलोड बाय गेटिंग इक्वली इन्वॉल्व इन प्रपोज टास्क. ठीक है. एट द एंड ऑफ द मीटिंग मेक श्योर जो भी वर्क असाइन होना हो वो जहां तक हो सके पॉसिबल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सबके पास, so that people don't feel that any partiality was done or too much load has been given on one person. Okay. Do you have any inputs on this? Anyone? Anything regarding the meetings? Or you feel any bad experiences or any very good experiences with regards to meeting which you would like to share? Anyone? Okay, let's move forward. ठीक है. Very, very important to taking notes at the meeting. ठीक है. So when you are taking notes, you can either assign one person to it. It's always better कि एक पर्सन को असाइन किया जाए. आपके क्या होता है, सब अपने अपने नोट्स लेते हैं या फिर यू असाइन समवन की इनको नोट्स लेने? व्हाट हैपेंस? Do all of you take notes or you assign a person to take notes? How does it happen? You can type in the chat box as well. What happens? Do you take the notes or there's a note keeper? Anyone? या कोई भी नोट्स नहीं लेता? Okay. So Bishal says that everyone takes notes individually. Okay. ठीक है. अब so what happens when everybody is taking notes individually? अपने आप खुद के ले सकते हो, but there has to be a person who is taking notes to circulate the minutes of the meeting. ठीक है. So it's good कि आप अपने खुद के personal notes which are pertaining to you, but it's always a good idea to keep a note keeper who takes minutes of the meeting. ठीक है. So he will record कि मीटिंग कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कौन कौन प्रेजेंट था, जो भी पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए उसको सिंपल और शॉर्ट स्टेटमेंट्स में डिस्कस किए हुए. सो व्हाट डज द नोट्स और द मिनट्स ऑफ मीटिंग? इट सर्व्स एज अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट वर द डिसीजंस एंड डिस्कशंस डन ड्यूरिंग द मीटिंग. ठीक है. आफ्टर द मीटिंग, वंस द मीटिंग इज डन, conclusion, summarize what are the main takeaways, thank participants for their time and contribution, and for a follow-up, send minutes of meeting, action items promptly. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मीटिंग हुई है और हफ्ता 10 दिन बाद उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जा रही. नो, ideally within 24 hours of the meeting, the minutes of meeting should be sent. ठीक है. And then schedule a follow-up meetings as needed. Okay. Now
there are certain pointers we have also added towards in the presentation is about online meeting, because a lot of meetings also like this one is happening online. So some do's and don'ts when you're doing online meetings. So ठीक है, फर्स्टली सेलेक्ट द राइट टूल्स. तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, गूगल मीट यूज कर रहे हैं, मेक श्योर इट हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल अलाउड, इट हैज द टाइम डोमेन, बिकॉज जूम जैसे आप कर रहे हैं तो some if it's not a business or a professional license लिया हुआ, then it allows only 45 minutes or 1 hour of conferencing. So आप जो भी है, Google Meet doesn't have a time limit. So depending on what are your requirements, you use the right tool. ठीक है. Ensure all participants have access to necessary tools or software. So number of Zoom, Google Meet both work on web pages also, website also. Plus, but it is always preferable कि उसका जो ऐप है, जो सॉफ्टवेयर है वो आपके इंस्टॉल्ड हो. It's always advisable to tell people in advance कि we are going to conduct on this domain. Please, you can also send a link of the app or the software so that people can download it. सेटिंग ग्राउंड रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कर रहे हैं मीटिंग एटिकेट्स. ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि म्यूट रखें माइक्रोफोन. आई सेड कि जब पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हम वीडियो कैमरा ऑन रख लें. ठीक है, सो दिस कैन बी सेट इन द एडवांस इटसेल्फ. ठीक है, encourage participation and active listening. So I've been in between I've been closing the PPT, going back to a room, having a discussion about, so that keeps the discussion interactive. Again, as I said, you can encourage everyone to contribute here. ठीक है, there are tools जैसे आज के इसमें जरूरी नहीं है करने का, but you can use, there are polls. ठीक है, we are doing chat. ठीक है, there is something called breakout rooms also. Breakout room is actually, if it's a large participant, online meeting में हो सकता है 50, 100, 200 लोग भी हों जो participate कर रहे हैं, and you want to do a small discussion with a set of participants. Okay, so you can create a breakout room which is like a sub meeting in the online meetings. उसमें आप जितने members चाहे उनको डाल के, and you can have a sub discussion in that along with the main meeting. Make sure जब आप कर रहे हैं, you do a lot of testing. ठीक है, good lighting, like I'm visible, totally visible, यहाँ flood lights हैं, but even if you're doing it from home, make sure light जो है वो सामने से आपके ऊपर आ रही हो. I see a lot of people, you know, when they let's do that, let's open your videos and actually करते हैं हम लोग, इसको टेस्ट करते हैं. Guys, open your video. ठीक है, सो इसको देखते हैं किस किसके वीडियो सही हैं. ठीक है, राइट, ग्रेट. ठीक है, तो सम डोंट्स. ठीक है, जैसे सोमनाथ आपका पीछे लाइट है, ट्यूब लाइट है, राइट. सो व्हेन आप जब कर रहे हो तो वो ग्लेयर आ रहा है, आपका ऊपर से जो है ग्लेयर आ रहा है, राइट. ठीक है, सम ऑफ देम किसी ने अभी खोला था, उसने शायद बंद कर दिया. दे हैड अ विंडो एट द बैक. अगेन व्हेन यू हैड अ विंडो एट द बैक, तो क्या है, ग्लेयर कम्स लाइक दिस. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका पीछे जो हो वो कोई ब्लैंक हो. देयर शुडंट बी अगेन नॉट टू मच क्लटर ऑन द बैक. ठीक है, हो सके तो एक इंडिविजुअल सिंगल फ्लोर, ये यहाँ पे तो जैसे ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है, और यूज अ वॉल और अ बुक केस इज अ गुड थिंग. सामने से लाइट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम फ्रंट. मेरा फेस आपको दिख रहा है, विजिबल है, सो ऑलवेज जो सोर्स ऑफ लाइट है, मेक श्योर यू पुट इट इन फ्रंट. क्लियर. ठीक है, ओके. ठीक है, साउंड शुड बी ऑडिबल. ठीक है, सो आपके उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर देयर इज अ साउंड चेक. मेक श्योर यू डू अ साउंड चेक, स्पेशली व्हेन इफ यू आर द प्रेजेंटर, मेक श्योर यू डू अ साउंड चेक. ओके, ग्रेट. आधे लोगों ने कैमरे खोले तो मैं मान सकता हूँ कि बाकी आधे लोगों के कैमरे ऐसे लगाए हुए उन्होंने कि वो दिखाना भी नहीं चाहते. ठीक है, सो ठीक है, सम ऑफ यू गाइज आई हैव सीन दैट कि लॉट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द बैक. अगर आपके स्क्रीन्स हैं तो यू कैन उसको ब्लाइंड्स को बंद कर सकते हैं, यू कैन यूज दैट. ओके, ठीक है. ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कीप अ बैकड्रॉप ऑफ योर कंपनी, जैसे आईसेक का रखा हुआ है. मैरिलीना हैव केप्ट ऑफ आईसेक, दैट्स गुड. ठीक है, लॉट ऑफ पीपल का जो कैमरा होता है वो ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि ऊपर का फेस दिख रहा होता है, तो पंखा वंखा दिख रहा है. मूव द कैमरा लिटिल लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मूव इट लाइक दिस, कैन यू सी ऊपर का नाउ, कैन यू सी द सीलिंग.
दिख रहा है आपको? Should- आपका जो होता है, यू शुड बी, जहां तक कोशिश हो सके, यू शुड बी सेंटर्ड, राइट? बिकॉज के अंदर आप क्यूबिकल्स में दिख रहे हो, पूरा रूम नहीं है. सो मेक श्योर योर फेस इज एट द सेंटर व्हेन यू आर डूइंग इट. सो मेजॉरिटी शुड बी देयर. आसपास की सराउंडिंग शुड बी द मिनिमली विजिबल ऑन टू द स्क्रीन. क्लियर? ठीक है. संजीव, आपका पीछे का बहुत, देखो, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है. कैन यू सी दैट? ठीक है. अगेन फीडबैक है, टेक इट पॉजिटिवली सो यू कैन चेंज इट. सो दिस इज लाइक कि पीछे का आपने करा हुआ है. इज ऑलवेज बेटर टू मूव टू अ सिंगल वॉल या फिर एक कर्टन हो, कि एक सिंगल आए, वरना इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिसोनेंस फॉर अदर्स. ओके, ग्रेट. थैंक यू एवरीवन फॉर हु कंट्रीब्यूटेड. ओके, लेट्स मूव टू द पीपीटी नाउ. ठीक है. और ये भी देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भी चीजें, इट्स प्रोजेक्टिंग वेदर यू आर प्रोफेशनल इन योर वो नो. सो मैं जब भी आई एम कंडक्टिंग एवरीथिंग, आई टेक गुड 5 minutes टू टू सेट अप माई लैपटॉप. आई नेवर जस्ट आके कि यार खोल लूं, मैं कर लूं, वो कुछ भी दिख रहा है. ऑलवेज मेक श्योर कहाँ पे क्या एजेस है. आई मूव थिंग्स अराउंड इफ इट्स कमिंग इन द फ्रेम, बिकॉज इट इज प्रोजेक्टिंग माई प्रोफेशनलिज्म. It is projecting my professional onto the participants. Okay, so make sure आप जब भी ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, you make sure कि यार ये मैं अपना जो है प्रोजेक्शन क्लियर करूं from where I am presenting. Okay, great. अगर आप मीटिंग्स प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जैसे मैं आया यहाँ पे तो मैंने पूछा मैम कोई टेक्निकल सपोर्ट की, सेड या देयर इज अ गाय स्टैंडिंग बाय. ठीक है. बिकॉज आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं चीजें, तो देयर कुड बी बीच में कुछ ग्लिचेस हो सकती हैं. यू शुड हैव समवन. अगर आप इतने लोगों का, अगेन अदरवाइज व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी वेस्टिंग टाइम ऑफ, देयर आर मोर देन 30 पार्टिसिपेंट्स हियर. अगर मैं 5 मिनट भी बीच में और रुक के टेक्निकली करता हूँ, यू आर वेस्टिंग 150 minutes. ठीक है, इन दैट 5 minutes, राइट? सो मेक श्योर यू रीच ऑन टाइम. आप सारी चेकिंग कर लें पॉइंट्स के, इन एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल आई हैड ब्रॉट माय लैपटॉप हियर, तो उसमें रियलाइज हुई यार उसमें लैंड पोर्ट ही नहीं है. वी हैड इनफ टाइम टू सेंड दैट पीपीटी टू अनदर लैपटॉप, कनेक्ट इट, टेस्ट इट आउट एंड देन स्टार्ट इट. ओके, सो प्लीज डू दैट. वेरी इंपॉर्टेंट द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. आप जब भेज रहे हैं, व्हेन यू आर सेंडिंग अ लिंक टू पीपल, मेक श्योर यू आर सेंडिंग इट टू द ओनली official people. When you have the mail, please don't share it with any of your colleagues or anything who are not part of this. ठीक है. You have seen number of times, आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियोस में या व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड आ जाते हैं कि किसी की मीटिंग चल रही है, उसमें कोई भी घुस गया है और एवरीथिंग. सो प्लीज व्हेन यू आर शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपके पास जो जो लिंक्स आते हैं, मेक श्योर यू कीप इट विद योरसेल्फ. डोंट शेयर इट विद एनीबडी यू नो. ओके. Okay, done. Any questions specifically for online meetings? आपका कोई experiences हुआ है which you would want to share or want to know about कि सर इसमें online meeting में ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं? Or for normal meetings, if you want to ask me anything, कुछ पूछना चाहते हैं? Anyone? Or want to share something? Anything funny also would do. कुछ funny आपने करा है, कभी देखा है, आप online meeting पे कर रहे हैं? तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ. आई हैव डन मीटिंग्स फॉर समवन. तो कहीं सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई वहां मैडम बैठी हुई हैं, वो सब्जियां काट रही हैं साथ में, ठीक है, बैठ के, और वो खा रही हैं. कई जगह बैठे हुए हैं वो भाई साहब ऐसे बैठे हुए हैं, कैमरा ऊपर करके लेटे हुए हैं पूरे बनियान में. ठीक है. सो व्हाट डू यू थिंक व्हेन एज अ ट्रेनर, व्हेन आई एम डूइंग दिस ट्रेनिंग एंड आई एम सीइंग पार्टिसिपेंट्स ऐसे कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू आई कैरी ऑफ देम एंड द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट डू यू थिंक? नॉट सो गुड, राइट? ठीक है. बिकॉज द थिंग इज कि यार मैं 50 लोगों की ट्रेनिंग ले रहा हूं, आई वुडंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ दोस पीपल, बट व्हेन इवन अ सिंगल पर्सन इज डूइंग दैट ऑनलाइन, राइट, द इमेज आई कैरी फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कि यार यहाँ पे बहुत लीनियंट टाइप के लोग हैं, प्रोफेशनल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन. यस और नो, राइट? सो व्हेनेवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर यू गाइज आर ज्वाइनिंग, ठीक है, प्रोफेशनली, ठीक है, मेक श्योर आप जो हो एक प्रोफेशनल करो. बिकॉज ट्रेनर को इंडिविजुअल नाम याद नहीं रहेगा, ट्रेनर को पर ये याद हो जाएगा कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने यार 10% लोग जो थे वो ऐसे कैजुअली ले रहे थे, राइट? इवन व्हेन आई आस्क फॉर पीपल टू स्विच ऑन द वीडियोस,
I see a number of people will not switch on. That would say कि यार ये I don't even know some of the trainings online पता ही नहीं चलता लोग हैं भी या online छोड़ के चले गए. ठीक है, but this is carrying a lot of professional image for you and for the organization. ठीक है, people would be judging it. अब जैसे for example आज का जो है ये session, these sessions are recorded. You never know कि इसकी recording कौन देख रहा है यार. A person can just go through कि यार मुझे recording भेजना है, let me see how many people, and हो सकता है मैंने यहाँ पे आके किसी का नाम बोला हो और वो person is not responding. Your hire will come to know यार ये तो ट्रेनिंग छोड़ के चला गया था. The trainer was asking कि आप कैमरा करो या जवाब दो, nobody was responding. So as I said, आप पर्सनल स्फेयर में कैसे भी हो सकते हैं, but when you are taking care of a role professionally in everything, make sure, ठीक है, कि you deliver a professional image. Okay, चलिए, now let's move to the last second part, which is email etiquettes. ठीक है, so again बहुत बेसिक्स हैं, but बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर लार्ज पार्ट ऑफ आवर लाइफ जो है आज, यू नो, फ्रॉम द टाइम इंटरनेट हैज बीन मेड. आप दिन में कितनी मेल्स लिखते होगे बताओ? आप लोग दिन में कितनी मेल्स भेजते होगे? एनीवन, एनी गेसेस? यस ध्रुवा, राइट ऑन द चैट, यू कैन राइट ऑन द चैट. अप्रोक्सीमेटली कितनी मेल्स जाती होंगी आपके उससे रोज? कैन आई हैव ऑप्शंस ऑन द चैट प्लीज? PGOC says 5 mails. Anyone? 15. Okay. Even more than 15 emails a day, responding to 2. Okay, 4, 5. ठीक है. So average I'm getting 5 emails, right? So every time you send an email, right? Is it only to within the company or is it outside also? कि नहीं सर हम आउटसाइड आईसेक वालों को भी मेल भेजते हैं. Do you send emails among yourselves only or do you send it across also to other organizations? Anyone? Outside also? Okay, great. Basically, so most people, some are saying basically on organization, some saying outside also, right? ठीक है, only in department, right? ठीक है. How many of you feel कि हाँ सर मेरी मेल्स परफेक्ट होती हैं? Anyone who feels कि सर हाँ मैं I take care of each and everything when I'm sending emails, or you just send it कि हाँ सर मैं तो बस भेज देता हूँ? Okay. How many of you have attended a training on emails before? कभी करी attend किसी ने? Anyone attended the training on email before this email etiquettes? Okay, no. Anyone was attended before? Okay, ठीक है. So I'm getting a lot of no's. ठीक है, great. So please pay a great deal of attention in this. Okay, when we're going to talk about this. तो कुछ चीजें होंगी which you will be doing, which is good. Some things which you won't be doing, so you need to pay attention to. And please feel free to ask questions, right? Okay. ठीक है. So अब I don't know which software you're using. This is on old Outlook. आप Gmail use कर रहे हैं, Outlook use कर रहे हैं, Microsoft Mail use कर रहे हैं, but somewhat चीजें जो हैं वो same ही रहती हैं. ठीक है, which we're going to talk about the subject, the to and everything which are part of all emails. Okay. So एक second with the chart. Right. Okay. So first thing is, let's say confidentiality. Confidentiality is when you are marking mails to CC and BC. ठीक है, 3 कॉलम्स होते हैं. ठीक है. ओके, कैमराज ऑन प्लीज. ये बहुत मैं देखता हूँ, बहुत मेल्स में आते हैं, ये गलतियां करते हैं लोग. ठीक है. सो यू हैव 3 things, to CC and BC. Now tell me, when do you have to do to, when do you have to do CC, when you have to do BCC? CC BCC में क्या फर्क होता है? कब 2 में मार्क करेंगे, कब CCC में, कब BCC? Anyone? You can also send in the message.
if you can also type in the message कि सर यही है, I can read it out, or you can come on the camera and say it. You can switch on your microphone and say it. Are you clear about that? When to use 2CC and BCC? अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मेल है, ये भेजना है, अगर सबको भेजना है ट्रेनिंग का, तो किसके अंदर रखना चाहिए? सर सीसी में। सीसी में, ओके। जी व्हाई नॉट इन बीसीसी? सर बीसीसी में एक्चुअली जिनका एड्रेस होता है बाकी लोग उनको देख नहीं पाता, मतलब बीसीसी में ये भी है, मतलब सीसी वाले Okay. सबको देख सकते हैं। हाँ, तो सबको दिखाना चाहिए या सबको नहीं दिखाना चाहिए? वो डिपेंड करता है सर, मेल के एग्जैक्टली, ऊपर। डिपेंड करता है। ठीक है, सो अगर ये जैसे अगर ये ट्रेनिंग का मेल आ रहा है तो इट्स ओके, यू कैन कीप एवरीवन इन सीसी बिकॉज आप इंटर डिपार्टमेंट देखना चाहते हो, एंड इफ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज पीपल की कौन था नहीं था, देन यू कैन कीप इट इन बीसीसी। ठीक है, इट्स अ कॉल। ठीक है, बट इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट कि यार मुझे करना ही नहीं करना, इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप इट इन बीसीसी। It's always better to keep it in BCC if you are not sure about कि किसको मैं इसको बताना है कि कौन ट्रेनिंग का पार्ट है या नहीं। ठीक है, सो ये जो कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को ये बहुत होता है, and I've seen a lot of। अच्छा, what about if you're sending it to बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, let's say if you are inviting a lot of invitees, सबको एक इनविटेशन भेजना है and it is going to different outside your organization, तब CC यूज करना है या BCC यूज करना है? सर हम तो बीसीसी यूज करेंगे। गुड, सर स्पेशली जब विद इन आप ऑर्गेनाइजेशन भेज रहे हो, यू कैन टेक अ कॉल एट टाइम्स ऑफ सीसी बीसीसी, बट इफ इट इज गोइंग आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन टू मल्टीपल पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑलवेज मेक श्योर यू पुट इट इन बीसीसी। ठीक है, एक को पता नहीं होना चाहिए कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में किसको भेजा है। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द गो बैक टू द प्रेजेंटेशन नाउ। ठीक है, so firstly realizing that your emails are not private क्यों नहीं है? because it can be hacked, it can be used, किसी को कोई भेज जाता है। तो बहुत ध्यान रखिए, अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल, प्रोप्राइटरी या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या पर्सनल, प्लीज डोंट सेंड इट ओवर ईमेल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर बहुत कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो देन डोंट सेंड इट ओवर ईमेल, इट शुड बी डिलीवर्ड इन हार्ड कॉपी ओनली। ठीक है, जब आप ईमेल भेज रहे हो सबको तो वाई सीसी और बीसीसी। ठीक है, रिमेंबर जो सीसी में जो नाम है, जो सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी एंड बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप जो भी नाम सीसी में डाल रहे हो वो सबको विजिबल होंगे ये नाम किस किस को गया है। ठीक है, सो बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर यूजिंग सीसीसी। ओके, अगर डाउट में है तो देन बीसीसी यूज कर लीजिए, इफ यू आर इन डाउट देन यूज बीसीसी। ठीक है, बट कहीं पे अगर आपको करना है वेयर यू वांट अदर्स टू बी नोन कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा ट्रेनिंग के अंदर, कौन कौन रहेगा, देन यूज सीसी। ओके, ठीक है, यूज ब्लाइंड कॉपी बीसीसी टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स। मैंने कई बार बहुत देखा है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और उनका एक मेल आएगा और वो सबके नाम, वो जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं सबके नाम सीसीसी में डाल देते हैं। सो आई कम टू नो उनके पूरे मेंबर्स क्या हैं, आई कैन टेक दैट डेटा इन यूज इट स्पैमिंग के लिए, सेंडिंग माई वो कि आप मेरे से ट्रेनिंग करवा वो करो। आई कैन एक्चुअली टेक दैट डेटा एंड सेल इट टू समवन कि सर मेरे पास तो बड़ी बड़ी कंपनीज के ये पार्ट हैं, इनके ईमेल्स और सबके नंबर्स हैं, आप प्लीज जो है मैं ये आपको डेटा बेच रहा हूँ। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है, ऑन डूइंग दैट। ठीक है, क्लियर? ठीक है, टू और सीसी का कब यूज करेंगे? टू में कब करना है और सीसी में कब करना है इस्तेमाल? टू किसको करेंगे और सीसी? तो जनरली मेल जिसको मार्क कर रहे होते हैं, जिसको आप डियर करके रखते हैं, ठीक है, डियर मिस्टर शर्मा या जो भी हैं, जिसको आप चाहते हैं कि जिससे जो एक्शन जिससे चाहते हैं कि ये इस मेल पे एक्ट करे, एक्शन करे, जनरली दैट नेम विल गो इन टू, दैट नेम विल गो इन टू। सीसी विल बी जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर्सन को मैंने ये ईमेल भेजी है। So let's say if you're sending a mail to a person
और उसके बॉस को आप मार्क करना चाहते हैं कि मैंने ये काम इस पर्सन को दिया है, तो बॉस का नाम सीसी में रहेगा और उसका नाम टू में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जनरली जो एटिकेट्स कहती हैं कि इफ यू आर मार्किंग अ मेल टू द बॉस, प्लीज पुट इट ऑन सीसी, प्लीज पुट इट ऑन सीसी, नॉट इन बीसीसी। अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो और उसके बॉस को मार्क कर रहे हो, तो सीसीसी में मार्क करना चाहिए, बीसीसी में मार्क करना चाहिए, किसमें मार्क करना चाहिए, किसमें मार्क करना चाहिए, बताइए। अगर आप किसी को भेज रहे हो कि ये काम है, उसके बॉस को मार्क करना है, आप सीसी में मार्क करोगे या बीसीसी में मार्क करोगे? सीसी में सर। ठीक है, क्यों सीसी में, क्यों बीसीसी में नहीं? कुछ लोगों ने कहा बीसीसी में, कुछ ने कहा सीसी में। राइट आंसर इज सीसी, पर क्यों बीसीसी में, क्यों नहीं? ठीक है, बीसीसी में इज लाइक देन यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। ठीक है, आप छुपा के बताना चाहते हो, तेरे बॉस को भी बता दिया मैंने, नो दैट्स रॉन्ग। ठीक है, इफ यू आर डूइंग इट, इफ यू आर मार्किंग इट टू बॉस, प्लीज पुट इट इन सीसी सो दैट पर्सन ऑल्सो कम्स टू नो कि मेरे बॉस को मार्क किया गया है। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, Yes, sir. Yes, यू sir. मार्किंग इट टू somebody's boss, please put it in CC, not in BCC. Okay. सेकेंड थिंग इज कि जब वो रिप्लाई ऑल भी करेगा तो फिर जो सीसी वाले हैं उनको ही मेल रिसीव आएगा कि इनको है। ठीक है, बीसीसी वालों को मेल जो है, जो जो बीसीसी वाले हैं वो जब रिप्लाई करते हैं तो बाकी बीसीसी वालों को नहीं दिखता, जो सारे सीसीसी वाले हैं उनको वो मेल रिप्लाई में दिखेगा। ओके, ठीक है, सो क्लियर हो गया अभी कब करना है सीसी, कब बीसीसी? ओके, एनी डाउट्स इसमें? किसी को डाउट? टू में किसको डालना है, सीसी में किसको डालना है, बीसीसी में किसको डालना है? क्लियर? ओके, ग्रेट। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन ही है, आपको दिन में कितने मेल आते हैं, आप करते 5 मेल हो, पर कभी 5 आते हैं, कभी 10 आते हैं, कोई कह रहा है यार 15-20 मेल आते हैं। ठीक है, यू विल नॉट हैव टाइम कि मैं सब में जाके पढ़ूं। ठीक है, आप सब्जेक्ट लाइन पढ़ के को सोचते हो कि मेल खोलना ही नहीं। ठीक है, so the subject line is the first thing the target receivers see when sorting through their inboxes. Okay, always write subject line that is informative, direct and state the main issue in the email. छोटा रखो उसको, ठीक है, सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिव रखो, डायरेक्ट रखो कि आप उसमें क्या बोलो। कीप इट शॉर्ट, लॉन्ग सब्जेक्ट लाइन डोंट शो वेल इन द ब्राउजर विंडोज एंड आर इग्नोर्ड। आपकी जो विंडो की जो लेंथ होती है वो पूरा, अगर आप सब्जेक्ट लाइन बहुत करोगे तो उसको छुपा देगी। सो ऑलवेज मेक श्योर व्हेन यू आर एंटरिंग अ सब्जेक्ट लाइन इट इज शॉर्ट, सो दैट जो वो विंडो है उसके अंदर वो पूरी की पूरी एक ही बार में पढ़नी होनी चाहिए। ठीक है, यूज सेंटेंस केस, नॉट ऑल कैप्स। ओके, जैसे ये वर्ड यूज जो यहाँ लिखा हुआ है, ये दिस इज सेंटेंस केस। कैप्स इज जब आप सारे कैपिटल लेटर्स में लिखते हो। ऑलवेज इन राइटिंग, वेदर इन ईमेल, कॉपी और इन सब्जेक्ट, आई हैव सीन सम पीपल अर्जेंसी दिखाने के लिए उसको कैप्स में लिखते हैं। नो, यू नो व्हाट इज कैप्स में करने का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन कैप्स में अगर आप लिखते हो, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट डिनोट, व्हाट आर यू डूइंग? इट मीन्स यू आर शाउटिंग। सो व्हेनेवर यू राइट समथिंग इन कैप्स, इट्स लाइक आपने उसको चिल्ला के बोला सामने वाले को, राइट? सो इट्स कंसिडर्ड वेरी रूड। ठीक है, सो डोंट पुट इट इन वो, यू कैन टू हाईलाइट इट, यू कैन पुट इट इन बोल्ड, that's okay. ठीक है, but never in caps. Okay, also another thing very important, when replying change the subject line when the topic changes. ये बहुत एक मिस्टेक है, इसको आप नोट डाउन करिए, बहुत लोग करते हैं। दिस अ चेन मेल, अब वो चल रही है, मतलब एक टॉपिक पे चल रहा था, वो कुछ दिनों तक चलती रही, अब वो टॉपिक चेंज हो चुका है। ठीक है, पर वो उसी चेन मेल में चल रहा है, बट वो टॉपिक सेम टू सेम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से I send a mail to a company saying that, proposal for training. ठीक है, they accept the proposal and they reply on that कि ठीक है सर, your mail is required. ठीक है, please send us the pro forma invoice. अब मैंने जो फर्स्ट मेल भेजा था वो तो
किसका था, प्रपोजल लिखा हुआ था. नाउ आई एम रिप्लाइंग टू द अदर मेल. या तो मैं एक अनदर, इधर आई मेक अ न्यू ईमेल, ठीक है, आई उसी चेन मेल की जगह मैं एक नया ईमेल बनाऊं न्यू सब्जेक्ट लाइन डाल के. और इफ आई एम लाइक कि नहीं यार एक ही चेन मेल है, लेट दिस बी द सेम चेन मेल, सो यू विल हैव ऑल द थिंग्स इन वन गो ओनली. If you are doing that, then very important, if I'm sending the pro forma invoice, I will edit the subject line. Otherwise it will say reply proposal for training, जबकि मैं अब proposal नहीं भेज रहा, अब मैं pro forma invoice भेज रहा. Clear? Is it clear? ठीक है. So whenever the topic of the mail which you are putting in diff is that is changing, you need to change the subject line. Clear? Great. ठीक है. ठीक है. So when you are writing a subject line, ठीक है, sorry, there are 3 U's, not 4 U's. There are 3 U's which need to be taken care of. Sorry. Just a second. Share. Yes. Sorry. 3 U's to useful, ultra specific and urgent. ठीक है. So पहले 2 use जो हैं, जो use है, ठीक है, should always be used, definitely be used. Then when you're writing a subject line, it should be useful and ultra specific. That means very short. कि आप उसके अंदर क्या बोल रहे हो. थर्ड वाला जो है अर्जेंट, इट हैज टू बी ओनली यूज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. और जो मैंने बोला है, कई लोग जो करते हैं, यू नो, फॉर पुटिंग अर्जेंट व्हाट दे डू इज उसको कैप्स लॉक्स में लिख देते हैं. प्लीज डोंट डू दैट, दैट इज कंसिडर्ड शाउटिंग. आई विल रिपीट अगेन उसको. ठीक है. आप बोल्ड के अंदर कर सकते हो, या फिर आप जो कर सकते हो, यू कैन पुट अ हाइफन एंड यू कैन राइट अर्जेंट और वेरी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट. कई जो है मार्कर्स है अलाउ मेल, जो सॉफ्टवेयर टैलेंट्स होते हैं वो भेज सकते हो, जिसके अंदर आप भेजते वक्त उसके अंदर टिक कर सकते हो दिस इज इंपॉर्टेंट और नॉट. बट ये हर उसके अंदर होता नहीं है. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि सामने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है कि उसको वो अर्जेंट या इंपॉर्टेंट दिखेगा या नहीं दिखेगा. तो अगर आप भेज रहे हो, इफ यू डोंट नो वेदर दैट क्लाइंट हैज दैट सेम सॉफ्टवेयर और उसका अपडेटेड वर्जन है या नहीं, ऑलवेज अ गुड आइडिया, जब वो अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है तो आप सब्जेक्ट लाइन में कर दो. बट यू उसको जब आप यूज कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू एवरी टाइम, बिकॉज यू नो अब हर मेल ही इंपॉर्टेंट करके भेजोगे तो वो सामने वाला समझ लेगा ये तो हर मेल में इंपॉर्टेंट डाल देता है, इसकी मेल्स यानी इंपॉर्टेंट होती ही नहीं. सो यूज इट स्पेयरिंगली. उसको आप जो है जब एक्चुअली अर्जेंट हो, जब एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो, तो ही आप सब्जेक्ट लाइन में इंपॉर्टेंट या अर्जेंट जो है उसको करें. ठीक है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल डिटेल्ड फाइनल रिपोर्ट ऑन promotional spending for year 22-23 और लीव एप्लीकेशन फॉर एग्जाम ऑन May 3rd. ठीक है. दीज आर एग्जाम्पल्स जो उसका अंदर रह सकता है कि आप सब्जेक्ट लाइन के अंदर इस तरीके की चीज डाल सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज ग्रीटिंग सैल्यूटेशंस, कि आप जो है जब मेल लिखते हैं ऊपर तो क्या मेंशन करेंगे. ठीक है. सो ऑलवेज ओपन योर ईमेल विद अ ग्रीटिंग. ठीक है. आप नॉर्मली लिख सकते हैं जो नाम, सरनेम लिख सकते हैं, जैसे डियर मिस वर्मा. अगर आपको नाम नहीं पता, ठीक है, तो आप सर डाल सकते हैं. प्लीज डोंट पुट फर्स्ट नेम. ठीक है. फर्स्ट नेम आपका कोई कलीग है समझ लीजिए, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं काफी टाइम से. ठीक है. नाउ यू नो देम, देन आप एक दूसरे को लिखते हुए लिख सकते हो डियर सुमीत. ठीक है. क्योंकि अब आप जानते हो. बट व्हेन इट ऑलवेज इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट, स्पेशली अगर आप अपने इंटर डिपार्टमेंटल किसी को भेज रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स पे भेज रहे हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भेज रहे हैं, देन फर्स्ट नेम मत इंक्लूड करो. ठीक है. within the same department to your colleague whom you know very well, then it's okay to write his first name. ठीक है. but otherwise avoid putting the first name. अगर आप बहुत पर्सनली उसको पर्सन को नहीं जानते, ठीक है, then always say the last name and you add Mr. Miss to that. okay. और dear sir, dear madam जो है you can put it into that formal or business emails. ठीक है. if you are contacting a company not an individual, you may write to whomsoever it may concern. अगर आप एक कंपनी को भेज रहे हैं और उसको आपको नहीं पता कि मैं किसको मार्क करना है, किसको करना है, तो देन यू कैन ऑन द टॉप ऑफ इट राइट टू whomsoever it may concern.
Okay, I have question how to write mail to GM, dear sir, गुड मॉर्निंग सर और डियर रिस्पेक्टेड सर. सी आप देखिए, आप जनरली क्या है, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग नहीं लिखेंगे, बिकॉज यू डोंट नो वो बंदा कब खुलेगा. तो आप अपने टाइम पे भेज रहे हो कि सुबह हो रही है, बट यू डोंट नो दैट पर्सन इज गोइंग टू सी इन द इवनिंग. दैट्स व्हाई इट्स नॉट एडवाइजेबल टू राइट गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून. ठीक है, यू कैन ईदर राइट डियर सर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर आप लिख सकते हैं. ठीक है, बोथ आर ओके. यू कैन राइट डियर सर ऑल्सो एंड यू कैन राइट रिस्पेक्टेड सर ऑल्सो, बोथ आर ओके. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, इसमें किसी को और सैल्यूटेशंस में और ग्रीटिंग में किसी को और पूछने का? ओके, नेक्स्ट इज ओपनिंग सेंटेंस. ठीक है, सो ओपनिंग इज पीपल जस्ट वांट टू नो व्हाट यू वांट, सो से दैट इन द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस ओनली. ठीक है, आप चाहते क्या हैं, और अगेन आई एम सेइंग इट्स अ प्रोफेशनल, बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, तो सब्जेक्ट लाइन शुड टेल एग्जैक्टली कि आप क्या, आपका किस टॉपिक पे आप भेज रहे हो. देन द फर्स्ट फ्यू लाइन शुड टेल अबाउट कि ये मेल मैंने क्यों लिखा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू टेक परमिशन फॉर लीव टू अपेयर फॉर एग्जाम, यू कैन बिगिन विद or your operation, this is to request you to grant me leave on May 3rd and 4th for my mother's operation. ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में ही मेल के अंदर जो है वो चीज मेंशन कर दी. इफ समवन रिप्लाइड टू योर ईमेल, यू कैन बिगिन विद थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई. अगर किसी का मेल का आया हुआ है, उसका आप रिप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई. ठीक है, एक बार जब आप लिख रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट योर पर्पस इन द ओपनिंग. आई एम राइटिंग टू अपडेट यू अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ एडमिशंस, or just a short email to give you an update about the number of admissions done. So जो स्टार्टिंग है ओपनिंग सेंटेंस में है, उसमें पर्पस क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि क्यों है. द नेक्स्ट इज द बॉडी और द इंफॉर्मेशन. उसमें बी ब्रीफ बट पोलाइट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी मेल लिख रहे हैं, मेल की भी, वर्ड्स की भी टोन होती है, जो इट कैन, कुछ वर्ड जो आप लिख रहे हैं वो ऐसा लग सकता है ये बहुत रूड लिख रहा है आदमी. ठीक है, तो पर्सन इज राइटिंग इन अ वेरी रूड टोन, सो मेक श्योर इट इज अ पोलाइट टोन. ब्रीफ रखिए मैसेज को. ठीक है, टेल देम एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन एज शॉर्ट एन ईमेल एज पॉसिबल. इफ योर मैसेज रन्स लॉन्गर देन 2 or 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स, रिड्यूस द मैसेज और प्रोवाइड इन दैट. ईमेल जो है, आइडिया है वो बहुत लंबे मेल्स का नहीं होता. ठीक है, सो अगर 2-3 पैराग्राफ में चीज नहीं आ रही, तो इट्स बेटर कि उसको चीज को आप अटैचमेंट में अलग से करके रख दें कि एक अटैचमेंट में साथ में दे रहा हूं आपको. ठीक है, रिमेंबर जैसे मैंने लिखा था, बी पोलाइट, सो यूज वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू. ओके, अब ये देखिए, जैसे ये ईमेल फ्रॉम अ फैकल्टी टू द डायरेक्टर अबाउट लीव और फ्रॉम एन एम्प्लॉय टू द डायरेक्टर अबाउट लीव. अब ये मेल सब्जेक्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, लीव. ठीक है, सर एज यू नो माई मदर हैज ऑपरेशन, सो आई विल नीड लीव फॉर 4-5 days. आई विल फिनिश माई वर्क बिफोर लिविंग, थैंक्स मनोज. कैसा है ये ईमेल? हाउ इज इट? गुड? इज इट अ गुड ईमेल? इज इट अ प्रोफेशनल लुकिंग ईमेल? No, sir. नो सर, राइट? Sounds very rude. ठीक है, सो वेरी रूड. कोई बोला नहीं सर मैं तो ऑन पॉइंट लिख दिया था, छुट्टी चाहिए तो लिख दिया लीव. ठीक है, वो मेल में बस लिख दिया. ठीक है, एज कंपेयर टू, लेट्स लुक एट द सेम मेल. ठीक है, सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन फ्रॉम May 3 to May 9. Dear sir, this is to request you to please grant me 7 days leave starting from May 3 to May 9. As informed you earlier, I have my mother's operation during this period. I assure you that I will complete all my work before the due date. In case of any work, I'll be available on phone. Thank you. Best regards, Manoj, faculty, Jojo department, with mobile number. Is this better? Looks like a professional email, right? Yes, sir. Nice. ठीक है, this is there. अच्छा, अभी I don't know how many of you use ChatGPT or do you use ChatGPT? यूज किया किसी ने? और Google Bard? Yes, sir. तो ना- ChatGPT यूज किया, sir. Google Bard यूज किया है. ठीक है, सो आपको हो सकता है आपको यार मेरा I don't have a very good command on English language. ठीक है, and I need to write a mail. You can just go on to ChatGPT, tell them, write in your own words कि यार can you write a leave application for me, my mother's operation from this date to this date, to my manager. It will draft a very good email for you. You can just copy that, उसमें से आप अपने हिसाब से चेंज करके डाल सकते हैं.
राइट. सो प्लीज अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उसका इस्तेमाल करें आप. ठीक है, यूज द टेक्नोलॉजीज फॉर योर एडवांटेज. कितने लोगों ने यहाँ यूज किया हुआ है? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी पीपल हैव यूज्ड चैट जीपीटी और दिस गूगल बार्ड? Okay, I'm getting some names now. Yes, great. Great. So good. I'm seeing and I'm happy to hear that see that people are using technology. So please करें. These are तो आपको लंबा मेल लिखना है and this you can also use for अलग letter writing also. ठीक है? Great. ठीक है? So let's move forward. Yes. Salimuddin, you want to ask something? Salimuddin, you want to ask something? No, sir. No, sir. Okay, sure. ठीक है. Another thing is when you're writing a mail, generally write about one thing. अगर बहुत सारी चीजें आप multiple request लिखोगे ना मेल में, so it will not be, हो सकता है वो person सिर्फ just acts on one thing, right? Or reads only one thing and does that. If you have multiple things, always better to send multiple mails about it or put it in a bulleted form so that the person knows exactly what other things to be done. Final comes is professional closing. If you have to closing the remark. Okay, so courtesy is always important, no matter how short the email is. Before you end your mail, thank the participant person for his patience, cooperation. You can write, thank you for your patience, cooperation. Thank you for your consideration. Include or you can just write, thank you is also okay. Okay, you can write an accurate follow-up statement. I will send you additional information. I look forward to receiving your input or your reply. Let me know if the attached report is okay or I need to change the format. If a response is required, specify what and when. So end में आप thank you जरूर बोलो. आप क्या चाहते हो उनकी तरफ से वो जरूर उनके actionables mention at the end of the वो. Okay. At the end of your email signature, ठीक है, a professional signature makes it easy to contact you. ठीक है. आप जो है, how many of you have here saved signatures in your वो email में आपने save करके रखे हुए हैं? कितने लोगों ने सेव करके रखे हुए अपने सिग्नेचर? You can save your signatures कि every time you write, you don't have to write your signature at the end. करके रखा हुआ है कुछ लोगों ने? Okay, that's good. Right. Yes, sir. जिन्होंने नहीं करा हुआ, there is an option in your email where you can go into settings. In settings, you will find signature. In that signature, you can put down that signature. So what it can contain, the signature can contain your full professional name, the job title, okay, your business phone numbers, fax numbers, street address is optional, you want to put or not, business website, and if ये IT से पूछिए, there is a legal disclaimer जो कई companies बोलती हैं. So your company would also have, so take that. You can also ask your IT key to do it for you. कि can you enable this signature thing for me with the legal disclaimer. ठीक है. Always is professional. मैं बहुत लोगों का देखता हूँ कि वो सिर्फ they just write their name and send it to me. That is again very unprofessional. ठीक है. Make sure you have a professional signature under your page. अगर नहीं है तो please mark it as a things to do for yourself. ठीक है. Next comes is attachment. ठीक है. So if you are putting an attachment, mention them in the email so that the receiver knows look for and open the email. So please write, please find attached or I have attached this document. Very important naming of the attachment. ठीक है. Please don't name it as new file, new folder, JPG 001. Please appropriate उसका नाम दीजिए. Very, very important. Because क्या होता है, जो the person downloads the attachment, it goes into the download folder. Later on is searching, हो सकता है multiple attachments download किए. They have a hard time locating which attachment you had sent. So please थोड़ा सा take 10-15 seconds and rename the attachment you are sending. ठीक है. You can also start it, I have attached, please find attached, and I am attaching. Okay. Mention it in your email. कुछ फाइल फॉर्मेट गाइडलाइंस, ठीक है, जब आप भेज रहे हो, सो जो वाइडली एक्सेप्टेड हैं PDF, docx, XLSX, JPG, PNG, make sure you use any of these depending on what you're sending. अगर आप टेक्स्ट बेस्ड भेज रहे हो, then PDF और docx is the ideal वो. Please don't send it in anything. I've seen a lot of people sending text documents in JPG. Please don't do that. आप ऑनलाइन जाके उसको कन्वर्ट कर सकते. ठीक है.
And if you're sending an image, either send it in a JPG or a PNG format. Okay, please do that. Also know the sizes. ठीक है, try to keep it under 10 or 20 MB of the file. If it's a large file, then use a zip compression software. उसको zip करिए, आपका by default Windows के अंदर आता है. You can just उसको फोल्डर में डाल के उसको एक फोल्डर में डालिए, राइट क्लिक करिए एंड जिप करके कर दीजिए एंड सेंड इट जिप. If it's a very very large file, then take the help of your IT person to send it through a file transfer protocol software. Okay, never send an exe or batch files. You know what are exe or batch files? What are exe or batch files? These are executable files which are generally used to run a program. और maximum viruses जो आते हैं वो .exe और .bat files में आते हैं. आपको भी कहीं से अगर आया हुआ है, प्लीज डोंट क्लिक. इफ यू सी एक अगर दिखता है और उसमें लिखा हुआ है .exe और .bat, नेवर ओपन दैट फाइल. Never ever open a exe or a batch file sent to you through email. It could be a virus sent by someone. Intentionally हो सकता है नहीं भेजा हो, उसको कहीं से आया और उसने आपको फॉरवर्ड कर दिया हो. ठीक है, प्लीज मेक अ मार्किंग ऑफ दिस कि exe और बैच फाइल कभी नहीं खोलनी चाहिए. ठीक है, एंड वर्ड फाइल है तो PDF या docx में भेजूं, और वर्ड इमेज फाइल है तो JPG और PNG फाइल में भेजूं. ठीक है, if there are any other company guidelines with regard to this, you can contact your IT department. Last part of this is your acknowledgement which you are sending. So ideally, response time should be that within 24 hours, you should acknowledge the receipt of the mail, or if there are any company policy, but ideally it is कि within 24 hours acknowledgement जाना चाहिए. ठीक है, also consider the urgency. अगर किसी ने urgent mention किया हुआ है, that means they are in actually a hurry, they require a reply. So based on that, ठीक है. पुराना आउटलुक में आता था, अभी आई नॉट श्योर कि you can request a delivery receipt and a read receipt. This is you can use for tracking. But again, ये जिसको पर्सन को भेज रहे हो उसके उस पे ये है या नहीं सॉफ्टवेयर, will depend on whether you receive it or not. ठीक है, some of the guidelines which are to be used when acknowledging a email is timely response to within 24 hours, confirmation even if you are not मतलब उसमें जो actionables हैं वो नहीं कर रहे, but at least send a mail कि I have received your mail and I'll do that. Express gratitude, जैसे हमने कहा था रिप्लाई करते हुए कि thank you for sending your mail. Reiterate the next steps कि मैं आपको ये मेल भेज रहा हूँ, based on that these are the actions which I'll be taking. Maintain a professional tone when you're using it. Be clear and concise in your acknowledgement जो आप भेज रहे हो. ठीक है, टेम्पलेट रिस्पॉन्सेज भी आप सेव करके दे सकते हो कि किसी को कि यार यस आई हैव रिसीव्ड योर मेल, आई विल बी रिप्लाइंग इन विद इन अ डे. ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के बारे में. इंपॉर्टेंट सेटिंग एक्सपेक्टेशंस कि आप अभी मेल भेज रहे हो, बाद में इसका डिटेल्ड रिस्पॉन्स मैं आपको बाद में भेजूंगा. ठीक है, अगर उसके मेल पे अगर आपको कुछ फॉलो अप रिक्वायर्ड है तो यू कैन मेल कि आई रिसीव्ड योर मेल but these are the clarifications I require, can you please send me these clarification. You can also do that. ठीक है, lastly very important, जब आप एक मेल भेजने वाले हो तो उसको पहले रिव्यू कर लो. क्लैरिटी एक बार उसको पढ़ लो कि आपने जो मेल लिखा हुआ है वो ठीक से लिखा है या नहीं. इज इट क्लियर, उसको रीड करके सामने वाले को समझ आएगा या नहीं आएगा. देयर इज नो एम्बिग्यूअस सिचुएशन कि पर्सन को पढ़ के ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये करना है या वो करना है. सो इट हैज टू बी क्लियर एंड नॉन एम्बिग्यूअस. इट शुडंट बी लेंदी. अगर बहुत बड़ा मेल लिखा हुआ है तो उसको आप छोटा करके भेजें या फिर एज एन अटैचमेंट उसको करके भेजें. बिफोर यू फाइनली सेंड द बटन एडिट एंड प्रूफ रीड. अब बहुत इजी हो गया है, आपका खुद ही स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, द कंप्यूटर प्रॉम्प्ट्स यू. ठीक है, मेक श्योर यू अवॉइड दोज थिंग्स. मैंने आपको दिखा दिया था, आई शोड यू एन अनप्रोफेशनल ईमेल मनोज ने जो लिखा था, एंड आई शोड यू प्रोफेशनल इमेज एज वेल. सो योर email should resemble that professional image and not the unprofessional one. ठीक है, रिव्यू स्पेल चेक कर लीजिए आप. ठीक है, ऑटोमेटिकली करेक्शन नहीं हो रहा तो मेक अ स्पेल चेक. ठीक है, कुछ डूज एंड डोंट्स व्हेन यू आर सेंडिंग द ईमेल. डोंट यूज जोक्स और इमोटिकॉन्स. प्रोफेशनल मेल्स में आप स्माइलीज और ये सब चीजें नहीं डालेंगे. व्हेन यू आर इमोशनल नेवर सेंड अ मेल. बहुत लोग होता है व्हेन दे आर इमोशनल, किसी ने भेज दिया, इसने मेरे को कैसे ब्लेम करा. Please calm down, take your time. Never send when you are emotionally charged up. ठीक है, abbreviations का यूज मत करिए, जैसे PLZ, WUWT, what's up with that.
ठीक है, राइट प्रॉपर वो जो नॉर्मल है ETC एक्सेट्रा कैन बी यूज, PFA प्लीज फाइल योर टास्क कैन बी यूज. Don't use too much of exclamation, question marks or italics or multicolored fonts. Okay. And as I said, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, capital letters are a big no-no. It is considered shouting. Okay. Now we are moving to the last part. How many of you have to still write letters? Email की जगह letters भी लिखते हैं आप लोग? कितने लोग हैं आप में से just mention in my chat कि letter जाते हैं आपके hard copy में? Anyone? ओके ठीक है. सो आई गॉट सम येसेस, सो गुड टू सी दैट. ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं. ईमेल से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, पर हम एक बिजनेस लेटर जो है कॉरस्पॉन्डेंस के लिए कस्टमर, क्लाइंट्स और एक्सटर्नल पार्टीज के लिए बिजनेस लेटर्स अभी भी यूज करते हैं. ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में. उसमें इट कैन बी रिगार्डिंग इंक्वायरीज के लिए हो सकता है, इट कैन बी रिगार्डिंग रिप्लाईज इन कोर्ट्स के लिए, और इट कैन बी फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स और सर्टेन थिंग्स. ठीक है, इन सब चीजों के अंदर जो है हम लोग बिजनेस लेटर्स अभी भी यूज करते हैं. Now, how do you write effective letters? Firstly, किसको लिख रहे हैं, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए. What kind of information is required by the audience जिसको हम मेल लिख रहे हैं, that should be clear with you. ठीक है, how will you be sending, whether you will be sending by mail, आप courier से भेजेंगे, hand delivery होगी, ठीक है, and what kind of impression you want to form is something which you need to take care of. ठीक है, so your sense of purpose should be clear कि क्यों भेज रहे हैं. ठीक है, also it can be seen that कि if communication strategy then can I avoid sending a hard copy, सीधे email से भेज सकता हूँ, उससे काम हो सकता है, या फिर can it be done just through a phone call instead of writing a business letter. ठीक है, so think about that. अब जब आप बिजनेस लेटर लिखेंगे उसमें ये सब चीजें कवर होनी चाहिए. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. राइटर्स एड्रेस, डेट ऑफ राइटिंग, recipient's name, job title, address, subject, salutation, greeting, message, closing, writer signature, type, name, position of sender. In some situation, you can also contain enclosures and carbon copy receipts. Okay, so इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नहीं लिया है. ठीक है, so ईमेल से बहुत ज्यादा अलग नहीं है. ठीक है, एक्सेप्ट द टॉप थिंग, द राइटर्स एड्रेस, इन बाकी जो है काफी चीजें इसके अंदर सेम है. अगेन जो अगर आप लिख रहे हैं तो अगर आपको पता है मेल या फीमेल को, मेल्स को जा रहा है तो डियर सर, फीमेल्स को जा रहा है तो डियर मैडम. ठीक है, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो आप डियर सर्स भी करके जो है एड्रेस कर सकते हैं. ओपनिंग अगेन जैसे अपन ने उसमें देखा था ईमेल के अंदर की पर्पस हाईलाइट करिए कि वी आर राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, वी आर राइटिंग इन कनेक्शन विद, वी आर इंटरेस्टेड एंड दिस एंड वुड लाइक टू नो. ठीक है, इफ यू आर आंसरिंग द लेटर यू कैन स्टार्ट दिस कि थैंक यू फॉर योर लेटर, वी हैव रिसीव्ड योर लेटर. अगेन ये सब चीजें हम लोग ईमेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम रिप्लाई करते हैं तो वी स्टार्ट विद द. ठीक है, बेसिक बॉडी स्टाइल में फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे हमने ईमेल में बात किया था, पहला जो ओपनिंग होना चाहिए, स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर, आपने क्यों लिखा है. सेकेंड पार्ट में स्टेट योर पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड में कि आप क्या इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो या क्या चीजें उनको बताना चाह रहे हो, उसको शॉर्ट पैराग्राफ्स में ब्रेक करिए. ठीक है, अगर ज्यादा हो जाता है तो यू कैन रिफर टू एन अटैचमेंट कि एक अटैचमेंट है. लास्ट पार्ट जो होना चाहिए जैसा ईमेल में था, कॉल फॉर एक्शन कि व्हाट आर यू वांटिंग देम टू डू इट, कि आपने जो मेल भेजा उसके बेसिस पे आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं उसके लिखिए. एंड थैंक्स द रीडर फॉर हिज और हर रिस्पॉन्स. ठीक है, सो व्हाट यू कैन राइट साइनिंग ऑफ में, आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर रिप्लाई, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, looking forward to hearing from you. I hope that this information will help you. Please contact me, let me know if you need any further information. ठीक है, again print out निकालने से पहले reread your whole letter. ठीक है, to make sure that all information is there. Stationery very important. अगर आप across अगर within the department कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप letterhead stationery यूज करें, बट जब बाहर जा रहा हो तो make sure you use letterhead stationery. ठीक है, which is prescribed. ठीक है, फर्स्ट पेज जो होगा आपका स्टेशनरी का होता है, सेकंड पेजेस देयर समथिंग कॉल्ड कंटिन्यूएशन पेजेस व्हिच आर टू बी यूज्ड. हर पेज के लिए लेटर हेड मेन यूज नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट पेज के लिए लेटर हेड स्टेशनरी यूज होती है. टोन ऑफ मैसेज जो है जब आप यूज कर रहे हैं, रिमाइंड करिए पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ऑडियंस क्या है, इसको चीज का ध्यान रख के आपको यूज करना है. ऑलवेज ट्राई टू कीप इट पोलाइट.
थोड़ा सा हो सकता है, at times you'll have to use a more क्या बोलते हैं, assertive tone. कई बार आपको क्लाइंट को लिखना है पेमेंट नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, सो keep it polite, but you can use a more assertive tone at that time of it. ठीक है, very important when you're writing it. जैसे email में था, reread it to make sure that there is no ambiguity in the email. Okay. कुछ चीजें जो ध्यान रखनी, अगेन कैपिटलाइजेशन मत यूज करिए, अगेन इट्स इवन इन राइटिंग इज कंसिडर्ड शाउटिंग. ठीक है, पंक्चुएशन का ध्यान रखिए, डोंट ओवर यूज. आई हैव सीन सम पीपल दे राइट सेंटेंसेस, वो सेंटेंस का फुल स्टॉप ही नहीं आता, उसमें कॉमा सेमीकोलन कर करके एक सेंटेंस ही बढ़ता जा रहा है. नो, दैट्स नॉट कंसिडर्ड गुड राइटिंग. अगेन यूज, इफ यू आर, आपके राइटिंग स्किल्स नहीं है, टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और गूगल बार्ड. ओके, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए आप. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस नथिंग मोर ऑफ पुटिंग देन रॉन्ग स्पेलिंग. ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स और जार्गन्स का इस्तेमाल ना करें. फॉर एग्जांपल, एंडेवर की जगह ट्राई यूज करें, टर्मिनेट की जगह एंड करें, कमिंस की जगह बिगिन का वर्ड का इस्तेमाल करें. ठीक है, सो that we are done with. So let's just do a recap on what we have studied today. So first of all, we learned about the general etiquettes. We learned about professional in the workplace, about dress code, about keeping punctuality, about how to be respectful with our colleagues. Then we discussed about meeting etiquettes, about the agenda setting, taking notes at the meeting, and how to contribute and collaborate in the meeting. We also talked about do's and don'ts in an online meeting. Then we moved to email etiquettes, where we discussed about the subject line, the confidentiality, the CC, BCC part. We talked about how the mails have to be clear and concise, the content has to be relevant, and how the email has to be structured and formatted. We talked about the greetings and salutations, how to start an email, use the body of the email, how to close an email. We also talked about keeping the email very professional, and keeping the tone and language very polite, avoiding jargons. Then we talked about acknowledging of receipt. We talked about attachment guidelines as well. Okay, and finally we ended the session with letter writing etiquettes, how to write a formal letter, what are the things which are need to be required in it, the salutation, body, the closing. A lot of this was exactly what we had discussed in the email part as well. Okay, if you are interested in increasing your business writing skills, these are some of the additional reading: Etiquette Advantage in Business by Peggy Post and Peter Post, or Business Etiquette for Dummies by Stu Fox. These are the books which you can do. Okay, and you can take a screenshot of this if you're interested. And that's it. Thank you from my side. I'm Sumit Sani, and if you want to contact me, that's my email, coach.in@gmail.com. Or you can contact me on my website also, which is acetraining.co.in as well. Okay, any questions? Any final questions? Anything? Can we have the cameras on? Everyone, finally, to say bye and goodbyes. Okay. Any questions? So I can pass it on to Archana ma'am. Okay. Thank you for your patience, and over to you, Archana ma'am. Thank you, sir. So, Thank you, sir. I hope the session was useful. Yes, ma'am. Yes, Yes. yes, yes. Yes, So, ma'am. Yes, yeah, ma'am. Program. pardon? Fantastic program, ma'am. Today webinar. Yeah, thank you so much. Yeah. So we had previously also we are doing such sessions on the request of Arvind Chaturvedi sir. Do you know Arvind Chaturvedi sir as our national head? Yes, ma'am. Yes. So he had also asked me to do such sessions for all the zones. So we had done 1 hour sessions for each of the zones. I think Sumit Malhotra sir had taken one of the sessions for Northeast also. Or maybe we have missed out, I don't know. But okay, now this was the time when Indranil sir requested us for this session. And we are here with you all. So I hope that it was a good takeaway, and the things like email writing, letter writing, general etiquettes, and you have a great lot of takeover from this session.
Yes. Ma'am, thank you very much. I'm Indranil. Yeah, sir. Yeah, I could see you. Welcome, sir. The thing is, yes, Sumit ji has taken a session previously, but Yeah. the thing is that as because this new joinees keep on increasing day by day now, Mhm. especially we had nearly say 4-5 new joinees. So Okay. what I wanted to do was, so first to give them a feel of what we have done today, firstly, and then Hmm. again to reiterate the entire thing for the older lot also, Okay, sir. because we are seeing some lacunas here and there around the corner. So I just wanted, it's an effort to iron out those problems. Yeah. So it's also a case study for us in a sense that we'll understand in the days to come at least what happens, and then we can chalk out for the next level. Yeah. That must be more than this. That is the next level where they can take something back home again. Yeah. Sure, sir. Sure, sir. We'll do that again. And I promise you, we'll be coming up with the next session in a few months as per our requirement, and as per we will coordinate on this later on. And so I would now any questions from your side, from participants? No, ma'am. Okay, so I would like to thank every one of you, and also Dubra Jyoti ji, Indranil sir, my team, studio team, IT team, and everyone, marketing team, who had been supporting us a lot. And today, we are doing this session from i6 Studio. So as the time was short, we could not put the background and all the things, but I think it was a successful event. So we did it. And one thing which I would like to mention here, that we will be sending you the feedback form on your email, because we have already prepared the feedback and I wanted to send you on this chat. But during the session, I decided that we will send you on email now, because I want to add some more questions in that, which have been taken up by Sumit sir. So I hope you'll be answering that feedback form. It's basically an assessment form, and based on that, not only based on that, we will be giving you the certificates. But okay, it will be the basis for your assessment also for the newcomers, new joining. So thank you all, Indranil sir, Dubra Jyoti sir, participants, and management, our management, who has been very much supportive. And least but not the last, Sumit sir also, my team members also. So thank you everyone. Thanks. We will be Thank you. leaving the meeting now. Okay.